बंगाल का अभी तक क्या रुख रहा है पहाड़ को लेकर के? अभी तो पॉलिटिक्स इज पॉलिसी ड्रिवन. गोरखालैंड पॉसिबल है? Law for me was bread and butter. Politics for me is passion and commitment. It's conviction. कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है आइडेंटिटी गोरखा के लिए? पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल नहीं होता है. आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल. जीएनएलएफ का फॉल क्यों हुआ? गोरखालैंड देश को तोड़ने का आंदोलन नहीं, गोरखालैंड देश को जोड़ने का आंदोलन है. जीटीए तो आदमी के लिए नहीं बना है. जीटीए इज नॉट फॉर द पीपल. जीटीए इज फॉर द फ्यू सेलेक्टेड पीपल हु आर हेंचमैन ऑफ ममता बनर्जी एंड हर कोटरी. पहाड़ को एक नया लीडर का जरूरत है. कॉड देखते हैं? बहुत. कैसा लगता है? Great, great. I always wanted to be here, and the wish came true when somebody, your team, knocked my doors. हमेशा चाहत रहा है. I had some issues with the COD because I made a mistake once, and I have to accept it publicly. कि मैंने COD का एक content, despite being a lawyer, I violated the copyright thing, and that was a very viral video you made, and I believe अभी तक वो सबसे viral आपका content है on Mr. Geesing. जी. So I downloaded that and directly shared it in my page without giving credits. So I had some issues. That's not a problem. मतलब कभी कभी हो जाता है वो चीज़, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों को समझते नहीं है. As a layman में करता तो ठीक था. As a lawman मैंने किया, so I have the regrets, and today I take this platform to genuinely apologize to you and to many people who took that difficulty, because it was a great content, and every content of yours that I have been following COD and is great. You know, in many words, I believe this is a platform that you based here in Siliguri. But really, any other recently, yes, कल मैंने देखा आपका एक शिक्षा शेड्यूल पे. That was very well done. Thank you so much. Contently, intently, very educative, informative, and there was an analysis as well. Just not a news, but there was an analysis as to why we are not, why it is being delayed, what are the loopholes, how can we fight for it, what are the hindrances, state के front में, central के front में. So great contents. Thank you so much. Here at COD, we believe कि बस कंटेंट बनाना और अपलोड करना सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है. Right, absolutely. So जर्नलिज्म वायरलिटी भी नहीं डिफाइन करता है. Right. ऐसा नहीं है कि कुछ कंटेंट अपलोड कर दिया और वो वायरल हो जाए. Right. हम लोग बिलीव करते हैं कि मतलब कुछ भी कंटेंट जाए, उसमें 500 ही व्यू आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन वो जो 500 व्यूअर हैं, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से देखा है और वो फिर 5000 लोगों तक पहुंचाएंगे उस मैसेज को. So that is our motive. That makes you different from others. Thank you so much. इसी विषय में थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हुए, जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी रीजन के बिल्डिंग में, राइट? सो कैसा रहा है पहाड़ का या फिर इस क्षेत्र का जर्नलिज्म अभी तक? देखिए, क्योंकि मैं इसलिए भी थोड़ा सा मैं क्रॉस ये कर रहा हूँ, इसलिए भी पूछना चाहता हूँ बिकॉज आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, लॉ के प्रैक्टिशनर रहे हैं, है ना? सो आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझते होंगे मेरे ख्याल से. सो यू आर द राइट पर्सन हुम आई शुड आस्क. Although that's not my subject matter, journalism in itself is a great discipline, and I am not a student of it. उसका मैं विद्यार्थी नहीं हूँ. लेकिन yes, definitely with the advent of information technology, अभी तो युग है information technology का, तो ये युग बढ़ता जाएगा. तो इसमें जैसे आप लोग का भूमिका है, that has changed the entire perspective of journalism and how journalism should be. पहले था, हाँ, it was stereotype journalism. अभी तो प्रिंट मीडिया का इतना रोल नहीं रहा.
अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छा गया है. People are access to Android phones. It's a age of information technology, AI, data science. So you all are doing great. अभी पता चल जाता है आदमी को कौन सा कंटेंट क्या है, जर्नलिज्म क्या है, कौन येलो जर्नलिज्म कौन कर रहा है, कौन बायस जर्नलिज्म कर रहा है. Some you call that there's a cliche term like Godi media and all. People come to know, people come to identify. और ये तो सचमुच में एक स्तंभ है, fourth pillar of democracy. Without journalism, we'll not know the truth about what's happening in the world, what is happening in our courtyard, what is happening in their backyard. So I believe the entire era of journalism has changed. Yet many things remains to be done in the national mainstream. Right. And I believe I'm not an authority in this subject, so I'll not extend it much. Right. नेशनल न्यूज़ चैनल्स देखते हैं आप? बहुत सारे. Because नहीं, मैं बहुत सारा, I follow BBC Hindi, I follow India Today, NDTV, News Now, and many others. Right. Northeast में एक है हमारा, that Mozo. East Mozo, yes. Yeah, they are really doing well. Yeah. From Northeast. Yeah. सही है. मुझे कहीं ना कहीं वो वेकेंट दिखा कि इस रीजन में अगर था. अभी आप लोग वो वैक्यूम को पूरा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं. नहीं, यस, यू डन अ ग्रेट जॉब. थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा पहले से समझना चाहूँगा. ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब ये इंटरव्यू टाइप है, आपको ग्रिल करने वाला. दिस इज नॉट लाइक दैट. सी, बिकॉज इसीलिए मैं जर्नलिज्म से ही शुरू किया. जर्नलिज्म का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि मैं एक पॉलिटिशियन के साथ में बैठा हूं तो उनको ग्रिल करना ही है. मेरा जो कंटेंट है वो ग्रिल करने की वजह से वायरल बनाना है, ऐसा नहीं है. चीज़ों को समझाना हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपको समझना. काफ़ी सारे चीज़ जो सोशल मीडिया में शायद आपको लोग देख के समझते हैं, वैसा हकीकत में नहीं भी हो सकता है. सो ये एक प्लेटफॉर्म है उस चीज़ को समझने के लिए. थोड़ा सा समझना चाहूँगा, बचपन में कैसे थे आप? जैसे आज हूँ वैसे ही था. I was a bit apart from the ordinary. I always wanted to be a leader. ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने circumstances ने leader बनाया. I became a leader by chance. I have to truly confess, मेरे को confess करना है कि I was a leader by choice. मैं leader choice से बना. I had that instinct to be a leader, that leadership from my school days. I was very inclined towards politics because my family was very closely associated with the Gorkhaland movement of the 80s. Yeah, my uncles, my dad, and most of my family members. And Subhash Ghee Singh Saab had a great impact in my life. I really wannabe, sort of wannabe. I idolized him, where my friends followed football stars, rock stars, right. Cricketers. Right. I followed Mr. Ghee Singh, and I don't know why. That was my destiny, I guess. वो मेरे शायद खून में तो नहीं था, लेकिन मेरे जीन्स में था. मेरे को लीडरशिप करना था, मेरे को सबसे आगे होना था, और जो चीज़ में मैं सेकंड होता था वो मैं कभी नहीं करता था. Cricket, for example, I was not good in batting nor in bowling because you can see the physically देख सकते. तो I decided to do umpiring. I became an umpire. तो क्योंकि सब लोग सर बुलाते थे, वो ऐसा था मेरा. I was more interested into extracurricular activities than academics. I was an average student, but later on when I went to college and pursued the subject of my interest, मेरा अपना subject, pet pillow subject था, law, politics. Then my father decided that I be a lawyer, looking at things that I was interested in, the gift of the gab, the intuition, the clairvoyance. This all combined made me study law, and after that, it was no looking back. I did well in academics, and as a student, I was not good. You can call me an average student, but extracurricular activities, dramatics, elocution, debates, quizzing,
theoretics, that still reflects in me. तो मेरा बचपन रहा है कि I was very politically oriented. एक incident about interesting, and in class 10, while I was in class 10 in my alma mater, West Point School, now Narayana, then I was not made the school captain. I was made the school vice captain. I had a dream to be the captain, desperately. So I repeated class 10. I did not give the examination that year. And you can ask to many of my friends if you can verify that. To be a captain, I repeated class 10 one more time. Despite the fact that I qualified for my final exams, I told my principal that, sorry, because of some issues, health reasons and all, I could not. So that was the conviction, or what you say. People call it foolishness now, but no. That was the dreaded determination I had. Determination, that's the correct term. कि मेरे को कैप्टन बनना है तो बनना है. मैं रिपीट किया. I repeated class. फिर स्कूल के समय से ही जब आप लीडर के एक पोजीशन पे आप जब आते हैं तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलती है. Right. Definitely. I had the space, right, especially in school also, where I spend most of my time. The principal, late Pradeep Tamang, he was very kind-hearted. He always understood my latent talent, and he gave it the opportunity to be what I am. He never objected me. I used to visit different classes and deliver my speeches on politics and different subjects. One controversial speech I gave while I was a student, जब मैं बचपन class 8 में था तो हमको punish किया गया था 1 घंटे के लिए. It was a co-ed school, and I remember in class 8 standard, I gave a speech on family planning, and I displayed many things on educating everyone, and everybody listened to it very interestingly. Later on, few girls went and complained to the principal. I thought I would have been rusticated from the school because of the scientific content I spoke on the to entertain my friends. But then later on the principal called me. I thought he would call my parents and give me a transfer certificate. But contrary to it, he said, write speech in a wrong place. And the 3 lessons I've learned from that was I write speech in the wrong place. I should have delivered that. Actually, it was not a wrong place. That was the need of the hour. I had a book on essays. एक निबंध का किताब था तो हमेशा उनमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता था. एक फैमिली प्लानिंग का भी था. तो I used to speak on different subjects, but people didn't take it interestingly. But when I spoke on family planning, everybody took it very interestingly. So what attracted was the interests of the people. हाँ. तो ये था बचपन बहुत ही checkered रहा. It was a checkered my childhood days, but my parents, everyone encouraged me. पिताजी poet रहे हैं नहीं? Yes, thank you so much that my father has been a poet, and I was very inspired by his poems. That was an environment. वो वातावरण था. एक कवि का घर में कैसा वातावरण रहता है. तो that things contributed in being what I am today. The little things that I do. आपने कभी पोइट्री ट्राई की? ना. ये एक बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लॉयर का बेटा लॉयर, पॉलिटिशियन का भी बेटा पॉलिटिशियन होगा, लेकिन पोएट्स एंड ऑल दिस आर क्रिएटिव थिंग्स. That is not inherited. Oh, that would be the gift of कवि का बेटा कवि नहीं हो सकता. मेरा दूसरा ही talent है, and my father is proud that I am not a poet. मैं भी इस चीज़ को पॉलिटिक्स करता हूँ. सेकंड करना चाहता हूँ कि मतलब पोएट्री या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को सिखाया नहीं जा सकता. हाँ, सिखाया और इनहेरिट भी नहीं कर सकते हम लोग. हाँ, सही बात. बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका बचपन रहा. बहुत है. दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. आई कैन अंडरस्टैंड. इतने साल हो गए. रफली क्या एज है आपका अभी? 45 now. 45. Yes, 45. So you don't look like that.
Thank you so much. I was expecting somewhere around 40. Yeah. So देखिए वही मैं देख रहा था कि लाइक स्कूल में आप कैप्टन रहे और कैप्टन बनने के लिए जो डिटर्मिनेशन था आपका, वहाँ से कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ का जो ये है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो डिफाइन होना शुरू हो गया. Right. मैं भी पेदोंग सेंट जॉर्जेस का स्टूडेंट रहा हूँ Great. और मैं भी वहाँ पे स्कूल कैप्टन था. Great. तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि एक बार स्कूल के समय से ही आपको जब लीडरशिप मिल जाती है तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाता है. तब समझ में नहीं आती है. अच्छा लग रहा है इनफैक्ट बातचीत करके. सोशल मीडिया में जो आपको देखता हूँ और अब भी जो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग Perspective, narratives. राइट. सो लॉ, पिताजी ने कहा कि लॉ की पढ़ाई करनी है. Yes, absolutely. पॉलिटिकल साइंस नहीं. नहीं. क्योंकि मेरे पड़ोस में दार्जिलिंग के सबसे होनहार और वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविल लॉयर्स प्रेम कुमार आले, लेट प्रेम कुमार आले, he has been a pioneer of the Nepali Bhasa movement. He was a great lawyer and he was my neighbor. वो हमारे पड़ोस में रहते थे. तो his lifestyle was different from others, you know. And my dad wanted me to be like Mr. Ali. Independent, free, fighting for others. But that took a turn when I met Mr. Gising, when he was in Jalpaiguri. And I met him and I used to regularly visit Siliguri court. Achha. I was a regular lawyer under Deepak Kumar Nandi, one of the finest criminal lawyers in the town. I was under him. I was under his mentorship. Then I used to regularly go to the court because court is full-time. You can't be a part-time lawyer, and especially in the criminal law system. Right. And one day Mr. Gising summoned me to Jalpaiguri. Jalpaiguri हम गए तो मैं इतना पार्टी को टाइम नहीं दे सकता था उस समय. तो उन्होंने कहा कि आपको क्या बनना है, पॉलिटिक्स करना है या लॉ करना है. अगर आप कानून करोगे तो यू विल डिफेंड. कौन सी ईयर की बात है लगभग? दिस इज इन 2012. Yes, 11-12. I'm not very sure, but it has to be in 2012. You were pretty young that time. Yes, I was. I just started my practice. Right. It's been around 5-6 years. I was in Darjeeling under Taranga Kamal Pandit. Then later on in Siliguri, because of the circumstances, I had to leave Darjeeling along with Mr. Gising. तो क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने सम्मन किया और बोला कि आपको लॉयर बनना, अधिवक्ता बनना है, कालो कोट लाने की नेतागिरी करने. तो मैंने सारा कहा मेरे को तो आई हैव टू बी अ लीडर, आई वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, आई वांटेड टू बी लाइक यू. तो उन्होंने कहा तो फुल टाइम करना पड़ेगा पॉलिटिक्स. तो उन्होंने एक चीज़ कहा अभी तक मेरे इट इज़ इंडेलेबली engraved in my mind, in my system. उन्होंने कहा आप लॉयर बनोगे तो एक आदमी के लिए लड़ोगे. You'll fight for an individual. You'll fight for a client. लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में कमिट करोगे तो you'll fight for the society, you'll fight for the community. And from that day, I really focused more in politics. तो हार हो या जीत हो, law for me was bread and butter. Politics for me is passion and commitment. It's conviction. I lost on being a very good lawyer, and I would have no hesitation, or I would have no pretense, or I would not be boasting that if I had gone serious into law, then I would have been a very good lawyer. Right. That I missed. अभी भी है मेरा दिल में एक छोटा सा खटास है कि मैं ऑनेस्टली इतना प्रैक्टिस कर, क्योंकि आई बिलोंग टू द बेस्ट स्टेबल्स. अ हॉर्स इज नोन बाय, घोड़ा को तबेला से अब जाना जाता है. हॉर्सेज आर नोन फ्रॉम द स्टेबल्स दे कम. एंड आई हैव बीन इन द फाइनेस्ट चेम्बर्स ऑफ तरंगा कमल पंडित, हु हैपन्स टू बी अ ग्रेट लॉयर. The first who studied in, he is a barrister from London. I was associated with him. I was associated with Deepak Kumar Nandi briefly. So I had that gift. But some dreams are not fulfilled. But Anyways, lawyer turned politician. एक कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बो भी है. In fact, जी, लेकिन फैक्टर है. हाँ. Absolutely. आपने जो कहा
कि मेरा पिताजी कहा करते थे इट वुड बी लाइक एडिंग फ्रेगनेंस टू द गोल्ड, सुन में सुगंध बोलते हैं ना, कि द रिस्पेक्ट आई गेट, द प्रमोशन आई गेट, द माइलेज आई गॉट, द मेटेरिक राइज आई हैड in politics in a very short period, despite being in the opposition platform, managed to get 2 times MLA. It's history itself. Never an opposition bencher had been elected MLA from a prestigious seat like Darjeeling. True. So that happened. And mera law degree, because education is very important. And you also agree to it. Education plays a major role today. पहले था व्यक्ति विशेष का पॉलिटिक्स था, कैरिज्मेटिक लीडरशिप पे होता था. अभी तो पॉलिटिक्स इज पॉलिसी ड्रिवन. यू नीड टू हैव नॉलेज एंड नॉलेज कम्स थ्रू एजुकेशन. कहीं ना कहीं आप वो मेरा एडवांटेज रहा. एंड आई टुडे फ्रॉम योर generous platform, I would like to thank my father, my first inspiration, कि उन्होंने मेरे को एजुकेशन का महत्व समझाया. नहीं तो आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन परस्यूइंग हायर एजुकेशन. आई यूज टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ तेंजिंग नोर्गे शेरपा टू अवॉइड स्टडिंग, कि विदाउट एजुकेशन ही बिकेम वर्ल्ड फेमस. Even Richard Branson, I believe. So there were many examples I used to quote then to defend myself. So यही है. एक लीडर बनने के लिए काफ़ी लीडर्स से मिलना भी ज़रूरी होता है, ऐसा लगा मेरे को आपके जर्नी से. बिकॉज स्कूल में आपने एक अच्छा प्रिंसिपल पाया जिन्होंने आपको चिल्लाया नहीं. आपने आइडेंटिफाइड दैट, राइट. वो चाहते तो वो आपको ट्रैश भी कर सकते थे, व्हाई यू डिड दिस. बट कहीं ना कहीं वहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा. फिर आपके पिताजी जिन्होंने आपको गाइड किया. फिर सुभाष घई सिंह जी. मतलब टॉप नॉच लोग ही आपको मिल गए. ये दैट हैज़ बीन माई प्रोविडेंस. दैट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ. दैट आई वाज बोर्न इन अ वेरी गुड फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल. देन आई हैड अ कंपनी. मेरा जो कंपनी था, एसोसिएशन था, अभी भी जो है मेरे को बहुत अच्छा लोग मिले जिन्होंने मेरा रास्ता प्रशस्त किया, मैं आगे बढ़ सकूं, कुछ हासिल कर सकूं. एंड आई बिलीव समवेयर समवन इज सो ग्रेट अप देयर, कि मेरे को अच्छा लोग मिला रास्ते में, और आई कुड पुट एन इम्प्रेशन, द फर्स्ट इम्प्रेशन. दैट इज़, आई डोंट नो, दैट इज़ नॉट हाउ आई ट्राइड टू, लेकिन मेरा एक नेचर में कुछ ग्रह नक्षत्र जो होगा वो ठीक रहा होगा. सही. थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी अगर जाऊं तो सुभाष घई सिंह जी के से आप इंस्पायर्ड हैं जी. और कहीं ना कहीं जो भी सीखा है आपने, मेरे ख्याल से वो उनके अंडर में सीखा है. उनके जर्नी से आपने क्या सीखा है, और आप उनके सफलता या जो भी चीज़ उन्होंने किया अभी तक उससे कितना प्रभावित हैं, या फिर क्या सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया अभी तक, या फिर कुछ गड़बड़ था? ना, गड़बड़ तो मेरे को कहीं नहीं लगता. आज घूम फिर के वहीं पे आ रहे जहाँ सुभाष घई सिंह जी छोड़ के गए थे. 2007 का बात है, जब बिमल गुरुंग जी का आया था. उनका मुद्दा ही क्या था कि 6 शेड्यूल गलत है. 6 शेड्यूल विल नॉट फुलफिल द एस्पिरेशंस. हमको गोरखालैंड चाहिए. तो अल्टीमेटली 2011-12 में GTA में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ. लेकिन अभी घूम फिर के 2025 चल रहा है, और फिर बिमल जी बोल रहे हैं कि वो जो सुभाष घई सिंह साहब ने किया था वही सही था. अभी थोड़ा देयर इज़ ट्विस्ट देयर, कुछ नोमेनक्लेचर का वो बदल रहे हैं. लेकिन सुभाष घई सिंह वॉज नॉट रॉन्ग. सुभाष घई सिंह तो एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हमारा कम्युनिटी में आए लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं कर पाए. बिहारी में जन्म लेते, मराठी में जन्म लेते, गुजराती में जन्म लेते तो अलग चीज़ था. अडवाणी साहब ऑलवेज सेड, एंड इट इज़ ऑल्सो इन द प्रिंट, बहुत ही बड़ा मैगज़ीन में है कि यू आर द राइट मैन बॉर्न इन द रॉन्ग प्लेस. ही ऑलवेज फेल्ट दैट सुभाष घई सिंह शुड हैव बीन इन दिल्ली. तो 1988 में जब इंडिया टुडे का एक एडिशन आया, where they probably shortlisted 10 most capable people to be India's Prime Minister.
तो सुभाष सिंह साहब का नाम 6 नंबर पे था। डीजीएससी के फॉर्म होने के बाद में? हाँ, फॉर्म होने के बाद में। तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर, अ विजनरी, अ फिलासफर। समय से आगे थे, वो समय से आगे देख सकते थे। नहीं, नकारा नहीं जा सकता है, काफ़ी डेवलपमेंट तो उन्होंने पहाड़ में किया ही था, और कहीं ना कहीं अभी तक वो एग्जिस्ट करता भी है, अभी भी है। काफ़ी सारा चीज़ रुइन हो चुका है ना, काफ़ी सारा चीज़ अभी भी वो exist बचा नहीं पाए, हम उनका धरोहर को बचा नहीं पाए। और सुभाष सिंह साहब तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है। मैं तो कभी उनका खामियां दिखता भी नहीं हूँ और दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लगता है ही वॉज ऑल राइट। मेरा तो भगवान है, और भगवान ऐसा मैं भक्त हूँ कि उनका दोष में नहीं दिखता। फिर भी कुछ तो होगा, देखिए होगा, वो दैट इज़ फॉर द पीपल टू असेस। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा। भगवान का भी जो काम करता है उनका गलती होता है। इतना बड़ा देश है, इट्स अ बिग डेमोक्रेसी, इसमें लड़ाई करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। गांधी जी भी चाहते थे अखंड भारत हो, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को सब लेके हो, लेकिन उनका सपना भी अखंड भारत का पूरा नहीं हो सका। तो होता है, सुभाष सिंह भी चाहते थे गोरखालैंड हो, लेकिन देयर वाज कॉम्प्लेक्सिटीज़, नेशनल इंटरेस्ट भी का बात भी था, प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी था, तो बहुत सारा पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस था, तो हो गया जो भी। लेकिन अचीवमेंट हुआ आइडेंटिटी के लिए, वो एक छाप हो गया नेशनल मेन स्ट्रीम से। हम लोग को सुभाष सिंह जी ने कनेक्ट करवाया, गोरखालैंड को एक हाईलाइट हुआ। देखिए, अभी तक उनका ही ये वाणी है, ही इज़ द चीफ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। अभी भी इसके ऊपर राजनीति किया जा रहा है, होना या न होना ये तो अलग बात है। इससे पहले गोरखास्तान बोल के हाँ, गोरखास्तान भी एक कॉन्सेप्ट था, CPIM का टाइम में कोइन किया गया था। अभी गोरखा आदिवासी प्रदेश हुआ, अभी तो बहुत सारा नैरेटिव्स आया है, लेकिन कोर एसेंशियल तो ये गोरखालैंड ही रहेगा। आएंगे गोरखालैंड पे धीरे धीरे। जी। फिर हम क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन के साथ में जब बैठा हूँ तो पॉलिटिक्स विषय पे तो बात करना ही पड़ेगा, सो दैट्स मैंडेटरी। पोलाइट ट्रिक्स, बिल्कुल पोलाइट ट्रिक्स। अच्छा, आप इसे कहते हैं पोलाइट ट्रिक्स। सही है। कितने सेटिस्फाइड हैं अभी तक अपने जर्नी से, पॉलिटिकल जर्नी? पर्सनली यस, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल नहीं होता है। आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल, और हमारा स्ट्रगल का जर्नी तो अभी, आवर आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो तो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग को लगता है, चुभता है कि देश में इतना हुआ। गोरखास हैज़ ऑलवेज फॉलोड दैट quotation, I believe the US president once said, कि ask not what your country has given to you, ask what you have given to your country. तो हमारा पूर्वज थे, फोरफादर्स थे, हमेशा हमने यही कहा कि हम देश के लिए क्या दिए। इवन सुभाष सिंह वाज ऑफ द सेम, हम देश के लिए क्या दिए, देश ने हमको क्या दिया वो हमने कभी नहीं सोचा। हमको लगता था कि देश कहीं ना कहीं देगा। 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ देश, तो आवर लीडर्स देन हैड एन अपॉर्चुनिटी, हैड अ चॉइस of choosing between India and Britain, chief minister's province like a Hong Kong status, या आसाम के साथ मिलो या कुछ करो। पाकिस्तान का झंडा भी फरफराया था कैपिटल थिएटर में। there were many political options, but we loved India. Even Nepal would have been an option then, treaty obligated land, you know, Sikkim. So but our forefathers chose to be in the national mainstream with India, because we believe that we'll get justice. We fought along with Subhash Chandra Bose, we fought along with Mahatma Gandhi. हाँ, तो ये सब था देशभक्ति में, हम ओतप्रोत थे। हाँ, वो था। लेकिन अभी तक जितना भी प्रीसीडिंग गवर्नमेंट्स था, अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, all promises, but it has not yet been fulfilled. So we are still waiting for that. When will justice be delivered? आइडेंटिटी टर्म का आपने इस्तेमाल किया, आइडेंटिटी, political identity. कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है आइडेंटिटी गोरखा के लिए? It means a lot to the Gorkhas. अभी तक भी वो, because of the existence of Nepal, you know,
अगर नेपाल एग्जिस्ट नहीं होता तो ये आइडेंटिटी का सवाल ही नहीं था। अगर लैंग्वेज वो नेपाली नहीं होता तो अलग ही बात था। लेकिन अभी तक भी वी आर लेबल्ड एट फॉरेनर्स, especially in Bengal. Had it been Assam, the scenario would have been different. We'd have already got justice. Assam तो 7 states में वो हो गए। हम लोग बंगाल में हैं और आइडेंटिटी का सीरियस इशू है। अभी भी आई फील एज अ लेजिस्लेचर, आई फील अलाइंड, एलिनेटेड। हाँ, ये कहीं ना कहीं चुकता है। इसको एकदम ओपनली आई कैन नॉट टेक्निकली, एकेडमिकली और साइंटिफिकली डिफाइन एज टू व्हाट आइडेंटिटी क्राइसिस इज, बट समवेयर एवरीवन हैज़ बीन अ विक्टिम टू इट। एक लेजिस्लेचर हो या एक विधायक हो या सांसद हो या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट हो, एकेडमिशियन हो, कहीं भी पहुंचा है, उसको ना कहीं लगता है कि अभी तक ये नैरेटिव है। जैसे आप बोलो दार्जिलिंग से, जैसे आप बोलो नेपाली, वो बोलता है नेपाल से। तो इसका सॉल्यूशन के लिए तो स्टेटहुड का डिमांड है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ। दिस आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। रेसिप्रोकल स्टेटस, इंडो नेपाल ट्रीटी में जो प्रोविजंस हैं, ये सब है, ओपन बॉर्डर है, ये सब को लेके हम लोग का एक क्राइसिस है इंडियन गोरखास का। ये सुभाष घी सिंह साहब ने कहीं हद तक इसको द ब्रिज हैज़ बिन, उसको गैप हैज़ बिन ब्रिज्ड। अभी हम लोग का आइडेंटिटी, जब गोरखा अकॉर्ड हुआ तो 22 अगस्त 1988 को एक गोरखा अकॉर्ड हुआ था। 23 अगस्त को एक गैजेट नोटिफिकेशन करके इंडियन गोरखास आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लाइक द नेहरूज एंड द गांधीज, लाइक द मेन एंड द आईएस बोल के एक नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन अभी भाषा भी जो है, भाषा के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मे बी इट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन हमारा भाषा नेपाली बोल के संविधान में है। Although it has also been stated in the Objectum region that this language can be termed or called or officially used as गोरखा भाषा। अब नेपाली बोलने से तो ऑटोमेटिकली सब लोग को तो कहीं इतना ना कहीं वो कनेक्शन नेपाल को कर देते हैं। तो ये सब को चीज़ लेके, तो ऐसा नहीं लगता जिन्होंने ये मुद्दा को प्लेस किया था उसी समय इन सब चीज़ को सही तरीके से सुलझा के प्लेस करना चाहिए? हम लोग की तरफ से प्रयास हुआ था। सुभाष घी सिंह हैड, उस टाइम तो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पे सुभाष घी सिंह का ही रीच चलता था, और इंद्रजीत खुल्लर साहब ने भी ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि द लैंग्वेज शुड बी गोरखा भाषा, क्योंकि इंडिया में जितना भी राज्य बने हैं वो तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने। दैट वुड हैव ओपन द डोर फॉर स्टेटहुड ऑल्सो। वो डोर को भी क्लोज कर दिया पॉलिटिकली, और इसमें बहुत सारे कारणों हैं। नेपाली भाषा को मान्यता दिया गया है बिकॉज दे आर मेनी रीजन्स। वो इंटरनेशनल रिलेशन का कोई अगर अध्ययन करता है, उसको समझता है, तो वो जान सकता है कि उस समय राजीव गांधी का एरा में नेपाल के साथ इतना अच्छा रिलेशंस भी नहीं था। हाँ, वो अभी ये गंभीर विषय, आई शुड नॉट टॉक दिस इन द पॉडकास्ट। इसके लिए अलग से एक पॉलिटिकल एकेडमिक डिस्कशन हो तो हम बता देंगे। तो उस समय रिलेशंस ठीक नहीं था नेपाल से। सोनिया गांधी वॉज नॉट अलाउड दर्शन in the Pasupati temple, the pretext being she was a foreigner. So Rajiv Gandhi was annoyed when he went to Nepal. He was not given a proper protocol. उसका रिसेप्शन नहीं हुआ, प्रोटोकॉल रिसेप्शन नहीं हुआ। तो ये था, कुछ चल रहा था चाइना, इंडिया, नेपाल। तो अपीजमेंट ऑफ नेपाल गवर्नमेंट के लिए भी ये लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया गया। वो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन गोरखा भाषा होने से और था, और हम लोग को गोरखा बोलना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि हम लोग को अपने आप को गोरखा आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप गोरखालैंड बोलते हैं, गोरखा आइडेंटिटी का बात करते हैं। आई टोल्ड यू, एवरी लीडर टेल्स देयर इज़ एन आइडेंटिटी इशू, इट्स आइडेंटिटी इशू। लेकिन खुद को नेपाली बताते हो, खुद को नेपाली भाषा समिति बोलते हो, नेपाली समाज बोलते हो। आसाम में क्लियर है, हेमंत बिश्व शर्मा साहब, हम लोग मिले थे, राजू बिस्टा, हम लोग मिले थे। तो एक प्रतिनिधि टोली था, दे वर ऑल्सो मीटिंग। तो हम लोग को बुलाया, साहब ने बुलाया अंदर ऑफिस में, सीएम ऑफिस में।
तो बोला कि आप लोग का नेपाली है तो आई विल नॉट एंटरटेन, ये चेंज करो, आप गोरखा लिखो, गोरखा बताओ। नेपाल बोलने से, नेपाली बोलने से डायरेक्ट नेपाल हो जाता है। तो गोरखा जब ये हम यूज़ करेंगे, जितना आपको हम अपने आप को गोरखा बुलाएंगे, गोरखा भाषा कहेंगे, गोरखा समाज कहेंगे, तो स्लोली इंडियन गोरखाज ये हम लोग नेशनल मेन स्ट्रीम में कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि लोग खुद भी जागरूक नहीं हैं, ना या फिर क्लियर नहीं है वो, बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ मिसगिविंग्स, बिकॉज ऑफ सर्टन, अब यू मे बिलीव अब ये अब वो है, आपने कहा सही है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, वाई आई शुड बी कॉल्ड अ गोरखा एंड नॉट अ नेपाली। सही है, अच्छा टॉपिक है जी। इनफैक्ट। और कहीं ना कहीं फिर ये गोरखा टर्म में भी कंफ्यूजन देखता हूँ मैं। नेपाल के लोग नहीं चाहते हैं कि लोग यहाँ के लोग अपने आप को गोरखा बुलाएं, उनका खुद अपना ही डेफिनेशन है, उनका ठीक और है। हिस्टोरिकली वो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है। सो आई डोंट नो, लाइक आई डोंट वांट टू Yes, प्रूव दैट yes. विच पार्टी इज करेक्ट और विच पार्टी इज रॉन्ग, बट फिर वहाँ पे कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? आप एमएलए होने के नाते यहाँ ना, वो लोग का अपना पर्सपेक्टिव है, उन लोग का अपना नैरेटिव है। लेट देम बी, दे आर अ कंट्री, they are a country, they have no crisis at all, apart from crisis of development, of taking Nepal into modern era, ये सब है। लेकिन हम लोग का अलग प्रॉब्लम्स है, हम लोग का अलग इश्यूज है। क्योंकि इधर में जो गोरखा बोल के है, तो गोरखाज आर डिफरेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव, द वे इंडियन थिंग्स। गोरखा का तो मार्शल जो हिस्ट्री रहा है, इंट्रिकेटली जाने से तो आ जाएगा, देयर विल बी प्रोज एंड कॉन्स, देयर विल बी डिबेट्स, देयर विल बी थीसिस, देयर विल बी एंटीथीसिस, वी विल हैव टू कम टू अ सिंथेसिस कि इंडियन पर्सपेक्टिव ने इंडियन गोरखास बोलने से अलग धारणा है। इंडियन गोरखास, हाँ, we'll not go it from the Historical point of view, or maybe social point of view, socialist point of view, anthropological, ये क्या क्या डिफाइन करता है। जस्ट इंडियन गोरखास, वी आर इंडियन गोरखास। बस इसमें थोड़ा सा समझना चाह रहा था। तो अगर मैं गोरखा कहूँ, अगर हिस्टोरिकली नहीं कहूँ, तब तो सब लोग ही गोरखा हो जा रहे हैं। फिर भी अगर गोरखा कहूँ तो कौन कौन लोग गोरखा हैं? राई, लिम्बू, लेप्चा, खास, सब लोग ही गोरखा हैं? ऑल, एवरीवन, दिस शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला। जाति ही गोरखा है, जात अलग है। राई, लिम्बू, तामंग, नेवार ये जात है, लेकिन जाति कम्युनिटी इज अ गोरखा। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं गोरखा लैंड, राइट, encompasses everyone. Even a Marwari living in Darjeeling is a Gorkha. Even a Bihari, even a Bengali identify themselves as a Gorkha Bengali. या मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो तो घर में भी नेपाली भाषा का ही, हाँ, अब नेपाली ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बचपन गोरखा से बोलना ही, पड़ेगा। हाँ, मतलब अभी के लिए वो निकल जाता है। हाँ, निकल, ये सही। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को सुधार करना पड़ेगा। It will take time. It will take time. So they speak the same language at absolutely. home between the Common lingua franca. common ना? lingua franca. सही है, अच्छा भी है इनफैक्ट। और सब लोग इस तरह से मिल के रहे हैं पहाड़ में, उस चीज़ को दर्शाता है। Absolutely. कितना खुश हैं अभी का जो पहाड़ का जो माहौल है उससे। हाँ जी, दुख है। पहाड़ का जो स्थिति है, बोलते हैं ना, डायरेक्शनलेस, कहाँ जाना है। कॉम्पास जो है बर्मा का, सुभाष गिरी सिंह साहब कहते थे कि दार्जिलिंग पहाड़ का राजनीति ऐसा है कि बर्मा का जंगल में एक सिपाही ने अपना कंपास गुम कर दिया, कहाँ जाएगा। डायरेक्शनलेस, एमलेस, कहाँ जा रहे हैं हमको भी खुद को भी पता नहीं है। वी लैंड ऑफ नोवेयर, वेगाबॉन्ड। तो प्रॉब्लम है, हंसी है, ऐसा दिख रहा है। शांति तो दीदी बोलता है कि दार्जिलिंग में शांति है, तो दैट्स इन बंगाली इट्स कॉल्ड श्मशान शांति, ग्रेवयार्ड, पीस इन द ग्रेवयार्ड, देयर इज पीस इन द ग्रेवयार्ड, बट दैट्स नॉट पीस। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज नॉट पीस, वी आर लुकिंग फॉर जस्टिस। तो equally center and state are equally responsible for delaying justice to the Indian Gorkhas.
एंड जस्टिस डिलेड दे से इज जस्टिस डिनाइड। कितना साल हो गया, सबको न्याय मिला। आप देखिए नागा लोग को न्याय मिला जो भारत में रहना नहीं चाहते, भारतीय खुद को कहना नहीं चाहते। मीज़ो इंसर्जेंसी करता है, देश को हानि पहुंचाता है, उन लोग को न्याय मिला। सब मीज़ो नहीं, एक सर्टेन ग्रुप्स। बोडो को न्याय मिला, झारखंडियों को न्याय मिला, लद्दाखियों को न्याय मिला, कश्मीरी को न्याय मिला, सबको न्याय मिला। त्रिपुरी को न्याय मिला, गोरखा को न्याय नहीं मिलता है जो देश के लिए इतना समर्पित है। आज आप और हम बात यहाँ पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीमा पे एक गोरखा शहीद हो रहा है अपना मातृभूमि के सुरक्षा में। When will the government of India understand this? अब कितना आहुति देना पड़ेगा, कितना प्रमाण करना पड़ेगा। सुषमा स्वराज जी ने तो क्लियरली कहा स्टैंडिंग कमेटी में, पार्लियामेंट में नहीं, उन्होंने कहा है कि गोरखा का पर्सपेक्टिव अलग है, ये बिछंदवादी नहीं है, देश को तोड़ाने का आंदोलन नहीं है। गोरखालैंड देश को तोड़ने का आंदोलन नहीं है, गोरखालैंड देश को जोड़ने का आंदोलन है। वो अपने माथे पे लिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान। दे शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सुषमा स्वराज का एक ऐतिहासिक भाषण है, 6 शेड्यूल के ऊपर जब बोल रहे थे उन्होंने कहा था ये तो है कुछ, बट स्टिल वी आर होपफुल, स्टिल वी आर होपफुल। कांग्रेस ने अपनी क्षमता में जो था वो उन्होंने किया, नेपाली भाषा को मान्यता दिलाया, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया, GTA अच्छा हो या बुरा हो कुछ हो, अभी नाउ दिस द टर्म ऑफ द BJP एंड वी आर वेरी होपफुल। बहुत सारे प्रधानमंत्री हमने देखे, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक। जवाहरलाल नेहरू जी तो थे जिन्होंने कहा कि गोरखा सैनिक को हिंद महासागर में डुबो दो। इंदिरा गांधी ने कहा कि नेपाली लैंग्वेज इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, रिपीटेड बाय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भी यही कहा। लेकिन भारत में प्रथम बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि गोरखा का सपना मेरा सपना। वेरी होपफुल। बट इतने साल हो गए उन्होंने कुछ किया वी आर नहीं अब स्टिल तक। वेटिंग। अभी नेशनल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने कहा ना, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ गिवन, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। तो ये हमारा जीन्स में, पेट्रियटिज्म इज इन द जीन्स ऑफ द गोरखास। आप पर्सनली बहुत खुश हैं बीजेपी ने जो भी अभी तक किया है या फिर पहाड़ के लिए जो सोचा है उसके, क्योंकि आप चेयर पे साथ में नहीं, बैठते खुश तो उठते नहीं हैं। हो, खुश तो नहीं हो। मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्याछ, यू नो। तो बट आई एम रेस्ट assured they'll do something because I have been in the very close quarters with the BJP. राजू जी के कारण मेरे को एक्सेस है। आई हैव मेट द होम मिनिस्टर several times. I have met the Prime Minister 4 times. एक साधारण विधायक को इतना एक्सेस होना पार्टी में, बिकॉज आई फॉट अ BJP टिकट। तो आई नो द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन दिल्ली। यहाँ का लोग दिल्ली उन्होंने देखे हैं, सुने हैं, हम लोग तो दिल्ली जानते हैं। तो आई एम वेरी श्योर दैट दे विल डू समथिंग वन फाइन मॉर्निंग। One fine morning will come. A dawn will happen. There is क्या hope. चीज है वो सोल्यूशन क्या है? एक गोरखालैंड बनेगा या कुछ देखिए, और इट इज अ होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। आप एज अ पर्सन, एज एन MLA और एक पहाड़ के नागरिक के होने के हिसाब से, लाइक राइट, क्या चाहते हैं? गोरखालैंड हो या फिर एब्सोल्युटली अगर वही कह रहे हैं, क्योंकि आप चाहना तो गोरखालैंड ही है सबका। दूसरा कुछ होगा जो तो भी विपक्ष में है वो भी गोरखालैंड ही चाहते, उनका मजबूरी है। पॉलिटिकल कंपल्शन होगा बहुत लोगों का, लेकिन हर एक गोरखालैंड ही चाहता है। अगर उनका अंतिम डेथ विश हो तो वो गोरखालैंड ही बोलेगा। चाहना हमारा यही है। इफ द बॉल इज इन दिल्ली कोर्ट, दिल्ली क्या देना चाहते हैं हमारे लिए? नागा को नागालैंड दिया, मराठी को महाराष्ट्र दिया, पंजाबी को पंजाब दिया, लद्दाखी को लद्दाख देने वाला है। सबको न्याय मिला ये देश में। बंगालियों का बंगाल है, बिहारियों का बिहार है, झारखंडी को झारखंड दिया। तो व्हाई नॉट गोरखालैंड? गोरखालैंड इज द नीड फॉर इंडिया। अभी ऐसा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है
कि गोरखालैंड is a need for India, not for the Gorkhas. It is in the best of national interest. गोरखालैंड थोड़ा सा राष्ट्र इसको elaborate करना गोरखालैंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत किस तरीके से है। आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अभी जो एकदम वोलेटिलिटी ऑफ द रीजन जो है उसके ऊपर मैं ये नहीं बताना चाहता। ये सब चिकनने का बात ये दैट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, जिस माध्यम से बात कर रहा हूँ, यू हैव अ ग्रेट अप्रोच। आपका ऑडियंस ह्यूज है एंड योर ऑडियंस आर हाईली एजुकेटेड ऑडियंस जो आपको फॉलो करते हैं। दे विल अंडरस्टैंड। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। हैड आई बीन इन सम अदर पोर्टल देन आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव। लेकिन यहाँ पे वो यू गॉट टू नो क्या हो रहा है, चाइना कितना दूर पे है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जाके चाइना में क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट क्या है, 22 किलोमीटर स्ट्रेच क्या है, क्या नहीं है। तो गोरखाज आर वाइटल। Gorkhas are natural soldiers. You don't have to employ them. You don't have to put them a tag of the Indian Army or train them. हमारा है, blood में है. For the defense of India, for the security of India. For us, India is everything. And somehow, somewhere, even Delhi understands this. लेकिन राजनीति का बात आता है, इलेक्शन का बात आता है, सत्ता में आना है। मतलब ताज्जुब वही लगता है कि एक MP MLA का टेन्योर जितना भी होता है तो बातचीत जो है वो मिड में या फिर स्टार्ट के समय में नहीं होता। जैसे कि आपने भी MLA का जो पद लिया या फिर MP ने भी पद लिया, उसके बाद में कुछ दिन के लिए बातचीत होता है, बातचीत रुक जाता है, फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला होता है तो फिर बहुत तरीके का चीज़ जो है वो आने लगता है। ये मैं आपको एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनता के हिसाब से आप बताइए क्या ये सही है? नहीं। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स है, आपने बोला पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ कंसील्ड मैथमेटिक्स बोलते हैं। सब दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो नहीं होता, जो नहीं होता वो दिखाई देता है। लेकिन यू विल हैव टू राइज अवर पॉलिटिक्स इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द गोरखास। गोरखालैंड एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन it carries enormous potential for national security, national interest. ये बात दिल्ली को जानना जरूरी है। We have समझाया बहुत बार। I often write that is the only the medium मैं communicate कर सकूँगा प्रधानमंत्री। खून से भी मैंने लिखा था, हमेशा खून से भी ध्यान आकर्षण करने के लिए। मेरा एक अच्छा या बुरा एक हैबिट है कि I frequently communicate everything. It does not come in the social media. हमेशा मैं दिखाता नहीं हूँ, बहुत सारा confidential चीज़ रहता है। I keep on updating the Ministry of Home Affairs on various issues. That is something that I inherited from my leader, Mr. Gee Singh. उनका भी patriotism was on the peak. He was a nationalist. That's why the government of India treated him well, despite the state government. State government ने उनको international tag लगाने का बहुत कोशिश किया। तो Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India, directly came in defense and no. Subhash Gee Singh, who is speaking about bringing Gorkhas to the national mainstream, connect with the national, इनको anti-national कहना गलत होगा। So he always supported. You know the difference between the 1980s, 86 agitation and the agitation that preceded later on 2007, 13 and 17. Totally different. तो सुभाष गी सिंह जी का ही पार्टी है जिसने कहा कि पार्टी बंदा जाति ठुलो, पार्टी से बढ़कर जाति है और जाति से बढ़कर माटी। माटी क्या है? गोरखालैंड है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर ही है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग आउटसाइड इंडिया, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुरूप, भारत के संविधान को हम सर्वोच्च मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं,
और सर्वोपरि मानते, और हमको कोई भी सोल्यूशन हो संविधान के अंतर्गत चाहिए। मैं थोड़ा सा स्टडी करा तो देख रहा था इस तरह के डिमांड काफ़ी हैं हमारे कंट्री में। क्या सबको उनका देखिए हमारा, demand मैंने fulfill आई करना टोल्ड चाहिए? यू आवर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बोडोलैंड is हिस्टोरिकल there, राजवंशी का अपना ही है। एब्सोल्युटली है, होना भी चाहिए। अमेरिका में 50 स्टेट्स है। इफ यू डू अ स्टडी, इफ यू डू अ रिसर्च, देन इट इज इजी टू गवर्न स्मॉलर स्टेट्स। फेडरल पॉलिटी में जितना भी छोटा छोटा राज्य हो, अंग्रेज जाने से आगे तो इधर में 500 समथिंग प्रिंसिपैलिटीज एंड स्टेट्स थे। तो हमारा भी एटलीस्ट अभी 50 स्टेट्स तो होना लाजमी है। और इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, सो हर एक का संभव नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू सी। आई टोल्ड यू लॉट ऑफ थिंग्स कम इन टू प्ले। जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक लोकेशन, द डिमांड कितना पुराना है, कितना लेजिटिमेट है। हमारा डिमांड, हम लोग को देखिए कि ट्रीटी ऑब्लिगेटरी है। हम लोग ज़मीन के साथ आए हुए पीपल है। we faced a lot of injustice because of the historical wrong. We were, I don't know how we were assimilated with West Bengal, Observed Area Act ला के। हम प्लेबिसाइड नहीं बोलते, हम will not say that, will not say प्लेबिसाइड होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should be very sensitive to us, the minorities especially. Linguistically also we are minority, and they'll check into the records of Gorkha's contribution for the nation post and pre-independence. तो कहीं संख्या का बात रहा तो ठीक है, लेकिन संख्या का बात तो नहीं रहा। मैंने कहा गोरखालैंड देश के लिए बनना चाहिए, देश के इंटरेस्ट में बनना चाहिए, ना कि बंगाल का डिसइंटरेस्ट में या कि भारत का इंटरेस्ट में, हमारा गोरखा का इंटरेस्ट में। इट शुड हैपन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, एंड आई बिलीव नो बडी विल अपोज एक्सेप्ट बंगाल का तो धर्म ही है, बंगाल का अपोज करना उनका धर्म है। लेकिन अनलाइक कश्मीर, अनलाइक नागालैंड एंड अनलाइक, आई डोंट वांट टू नेम, उसका नेशनल पर्सपेक्टिव में देखिए तो अलग धारणा है। दे विल अपोज, द होल ऑफ कंट्री विल अपोज द क्रिएशन ऑफ सर्टन थिंग्स, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी। लेकिन हम लोग के लिए सपोर्ट आएगा, सेव एंड एक्सेप्ट बंगाल। और बंगाल से भी सब लोग नहीं, दोज हु आर इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दोज हु आर इन द स्टेट ऑफ गवर्नेंस, वो लोग उनका धर्म है, उनको राजनीति करना है। लेकिन राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं कहा ये बनेगा, जरूर बनेगा, बिना हमारे मांगे, बिना हमारे बोले, बिना स्लोगन दिए, ये बनेगा। वही पूछना चाह रहा था, बिकॉज आप एडवोकेसी भी करते हैं या फिर कर चुके हैं और लॉ को अच्छी तरीके से समझते हैं। लॉफुली कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है? इफ लॉफुली पॉसिबल होता तो वीड हैव नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। It's a political issue. It has to be solved politically. Political will होना चाहिए। Hey, the government of India has dossiers on the creation of a separate state. पहले भी बनने वाला था या क्या होने वाला था, कुछ है इधर में। अब देखिए पॉलिटिक्स है ना, माइनॉरिटीज़ का जनता को समझना जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम लोग उस दरवाजे का काम करते हैं, है ना? वही हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। और जनता को जानना भी जरूरी है। Yes, वो कब तक वो है ना, वो दो नाव पे पैर रख के चलेंगे। हाँ। जनता को जानना जरूरी है। और जनता को, हम लोग तो जस्टिस के लिए दिल्ली गए। कोई भी सबसे, अब जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। If you have been arbitrarily denied or encroached or your fundamental rights, कुछ भी हो, आपके लिए justice नहीं हुआ, तो you'll knock the doors of the Supreme Court following the procedure. From the district court you go to the high court and ultimately you go to the Supreme Court. ऐसे ही political injustice हुआ है, politics में हमको न्याय नहीं मिला है, तो we'll knock the doors of the PMO via HMO. That is the highest platform where we can, and we are doing that. हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभी इंटरलोक्यूटर आ गया,
तो ही विल असेस द सिचुएशन, रिपोर्टिंग करेगा। इंटरलोकेटर आए सच में? एकदम 100% अपॉइंटमेंट हुआ है। चिट्ठी नहीं मिला? चिट्ठी नहीं मिला, चिट्ठी तो हमको भी देखने के लिए मिला है राज्य जी के यहाँ से, लेकिन बट छुपाया क्यों जा रहा है? मतलब ऐसे ही, मतलब जानना चाहता हूँ क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए छुपाया तो नहीं गया है। पीपल क्योंकि कैन, देखिए, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग आजकल आप देखेंगे कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं, हर पॉलिटिशियन भी, उनके साथ साथ में एक फोटोग्राफर, एक वीडियो करने वाला घूमता ही रहता है। हर चीज़ वो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, राइट? कोई भी हो, वो मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, अपना अपना तरीका है। पहले न्यूज़पेपर था, है ना, मैगजीन्स थे, आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। बट इस चीज़ को छुपा दिया गया। नहीं, छुपाया नहीं गया है। जिसको पत्र आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, राजू जी को चिट्ठी नहीं आया है। इट हैज़ नॉट बीन फॉरवर्डेड टू राजू बिस्टा, इट हैज़ नॉट बीन फॉरवर्डेड टू द MLA, इट हैज़ नॉट फॉरवर्डेड टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल। सीएम को मिला है? यस, एब्सोल्युटली। चीफ सेक्रेटरी को मिला है, सीएम को मिला है। इसलिए सीएम ने दो बार दिल्ली में पत्रचार किया, व्हाई डिड यू अपॉइंट द इंटरलोक्यूटर विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट? It is a gross encroachment of violation of the federal polity norms. एक बार नहीं, 2 बार किया है। So this is the point of reference. Publicly चिट्ठी नहीं किया दिया गया क्योंकि राजू जी को भी ऑफिशियली उनका पास है the physical content, but it was not forwarded to him. It was not copied to him, neither to me. It was forwarded to the Chief Secretary, Chief Minister of West Bengal, and I told you the point of reference is that she wrote to the Prime Minister twice regarding the appointment. तो वो तो ऐसे ही नहीं लिखती। तो हम लोग को सब जो विरोध कर रहे हैं, चिट्ठी मांग रहे हैं, उन लोग को तो वहीं से मांगना चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बताते? चीफ मिनिस्टर दे देगा, चीफ सेक्रेटरी को। बट एमपी हैं यहाँ के, तो वही हैं, उनको नहीं मिला है। सेंटर के साथ में जो कनेक्टेड हैं यहाँ के लिए, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव मे बी ही टोल्ड आई हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड। कोई डायरेक्शन होगा, कोई इनपुट्स होगा होम अफेयर्स से, तो ही विल हैव टू फॉलो अडर। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इंटरलोकेटर अपॉइंटेड तो हो गए पंकज जी, लेकिन उनके तरफ से भी कोई बयान नहीं आया अभी तक। ना ही वो सोशल मीडिया में कभी आए हैं, या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का जो बयान है उनके तरफ से भी नहीं आया है। दैट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द बीजेपी। बीजेपी पहले कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी अलग था, ढोल धमाका करके पूरा प्रचार प्रसार करके कोई भी इशू को सॉल्व किया, वो होता था। हम देखे, आई एम अ विटनेस टू इट। जब भी कुछ करने वाला थे तो पहले आगे ही बताते। लेकिन बीजेपी देखिए, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, क्या हुआ? हल्ला वल्ला नहीं हुआ, सिर्फ भारत के 5 आदमी को मालूम था बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कोवर्टली करना पड़ता है, दुश्मन लग जाता है। कोई अच्छा चीज़ हो रहा है तो बहुत सारा एजेंसी पड़ जाता है, और इंटरनल ही नहीं एक्सटर्नल एजेंसी पर पड़ता है। मैं बोला बहुत सेंसिटिव एरिया है, कुछ यहाँ पे होगा। पहले भी दुश्मन लग चुका है, 6 शेड्यूल होने वाला था, क्या हुआ? दुश्मन लग गया। और दुश्मन ये इधर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था, वो तो मखौटा था, दे वो पेड एजेंट्स। लेकिन दुश्मन तो बड़ा था जिसने ये सब चीज़ को डिरेल किया। इसी के कारण हो सकता है। और जितना भी बीजेपी ने किया, वन फाइन मॉर्निंग, पता भी नहीं चला, कहीं भी न्यूज़ में नहीं था, कहीं भी हेडलाइंस नहीं था, कहीं भी कोई चीज़ वायरल नहीं किया था। तो चुपचाप सुबह ब्रेकफास्ट में प्रधानमंत्री से मिले और कोई अकॉर्ड हो गया, कोई समझौता हो गया। तो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और दिस इज़ बंगाल, इलेक्शन का माहौल है, कुछ गड़बड़ा जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऑपोजिशन, इसीलिए एक फिशी वाला जो सिचुएशन है, फिशी नहीं इसीलिए क्रिएट हो रहा है। द वाटर इज क्वाइट मर्की, यू कांट फिश इन द मर्की वाटर्स। सो राजनीति में इतना तो होना चाहिए, इतना पारदर्शिता भी नहीं होना चाहिए कि हमको हैम्पर हो। इंटरलोक्यूटर हुआ है, इंटरलोक्यूटर है, उनका ऑफिस खुल गया है, इंटरलोक्यूटर काम करेगा। और दैट इज़ वी आर सेल्फ अश्योर्ड। इलेक्शन के बाद भी काम होगा, इलेक्शन के बाद भी काम होगा। अगर इट डिपेंड्स नो सोल्यूशन कब आएगा। जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा तो ही विल हैव टू वर्क, ही विल हैव टू कम्युनिकेट। क्योंकि बंगाल सरकार आ नहीं रहा है। 2 बार मीटिंग हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ट्राइपार्टेड मीटिंग। बंगाल तो एब्सेंट रहा, कभी नहीं आया। तो उनका मनसा भी जानना है। और फेडरल पॉलिटी का बात करता है
तब जब बुलाएगा होम मिनिस्ट्री में तो नहीं आएगा। थोड़ा सा बात करते हैं कि बंगाल का अभी तक क्या रुख रहा है पहाड़ को लेकर के, राइट? ममता बनर्जी के टेन्योर में वैसे एक कंपैरेटिव व्यू आपके नज़रिए से सीपीएम का समय सही था या फिर टीएमसी का समय सही है पहाड़ के लिए? इस समय तो दोनों समय अनुकूल नहीं था, दोनों समय अनुकूल नहीं था। उन लोग का अप्रोच पहाड़ के ऊपर इतना, दे जस्ट कंसिडर पहाड़ अ कमर्शियल प्लेस, अ टूरिस्ट स्पॉट। दिस इज़ आवर होमलैंड। उनको सिर्फ टूरिज़्म का पड़ा है, रेवेन्यू का पड़ा है। पहाड़ को एक होम स्टे की तरह दिखता है कि यहाँ पे अंग्रेज ने जो सोच रखा था हिल सैनिटेरिया, हाँ, वो बंगाल का भी वो कॉलोनियल जो अंग्रेज का था वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस आए, कम्युनिस्ट आया, अभी टीएमसी है, सबका यही है। जो कॉलोनियल मानसिकता है, हमको इंस्लेव करना, फ्यूडलिटी। हाँ, तो ये चेंज होना चाहिए। दिस हैज़ टू चेंज। हमारा होमलैंड है, हमारा एस्पिरेशन है। उनका कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं। कुछ तो पॉजिटिव किया होगा? कुछ नहीं। सीएम ने पहाड़ के लिए आती हैं बार बार मिलने के लिए, आती है और जाती है और कुछ नहीं होता है। पहले आता नहीं था, जाता नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हुआ। देखिए अभी सब जो है, काफ़ी सारे बोर्ड्स बनाए उन्होंने, तो क्या हुआ? बोर्ड का क्या है? दशा दिशा क्या है? दैट वाज अ प्लॉय। वो तो प्लॉय था, एक षड्यंत्र था हमको डिवाइड करने का, पैसा दे के डिवाइड करने का, लेकिन बैकफायर हो गया। शी कॉल्ड इट द सोशल इंजीनियरिंग थिंग, बट इट बैकफायर्ड हर। टीएमसी का तो प्रेजेंस नहीं है पहाड़ में, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, लेकिन अपना प्रेजेंस नहीं है। टीएमसी को तो पसंद नहीं करता। आई चैलेंज, इतना है तो फिर भी अभी पार्टी एग्जिस्ट करता है पहाड़ में। अगर अब है, रूलिंग का सपोर्ट ही है जो पहाड़ में अभी रूल कर रहे हैं। दार्जिलिंग में आके लड़े इलेक्शन विधानसभा मेरे साथ, दिखाता हूँ। ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी लड़े और यहाँ से भी लड़े, पता चल जाएगा मैंडेट क्या है प्लेबिसाइड का रूप में। If she thinks Kanchenjunga is smiling, Darjeeling as an integral part of India, people of Darjeeling love her, तो आ जाए, forfeit कर दूंगा मैं। It's a challenge from the podcast. ममता बनर्जी इतना इंटीग्रल समझता है, दार्जिलिंग के लिए इतना कुछ किया है, तो उनको खड़ा होना चाहिए दार्जिलिंग से। दो जगह से ममता बनर्जी तो दो जगह से, तीन जगह से भी, कहीं से भी खड़ा हो सकता है। आए, एक नंदीग्राम से खड़ा हो, जंगल महल से हो और पहाड़ से हो, दार्जिलिंग से। आई ले दिस चैलेंज टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फाइट इलेक्शन इन दार्जिलिंग एंड दार्जिलिंग विल शो यू हाउ मच दे लव यू और हेट यू और वांट यू और डोंट वांट यू। कुछ नहीं किया पहाड़ में, कुछ नहीं किया। शी इज़ नॉट डन नथिंग, शी इज़ टेकन अवे द ऑटोनॉमी। अनिल थापा साहब को तो पपेट बना दिया। अभी हम लोग को शर्मिंदा होता है अनिल थापा जी को एक लीडर कहने में। सुभाष गी सिंह को हम जब लीडर कहते थे तो हाँ, गोरखा का शान था, आन था, बान था। बिमल गुरुंग तक कुछ हद तक वो था। ऑल्दो वी आर नॉट ऑन द सेम लेवल इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेकिन अनिल थापा के कारण से तो क्या हुआ, पूरा वो कोलैप्स हो गया। गोरखा प्राइड, गोरखा शान। तो दिस इज व्हाट ममता बनर्जी हैज डन फॉर द हिल्स। डेवलपमेंट के नारा तो लगा रहे हैं। जीरो जीरो जीरो। क्या डेवलपमेंट? सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है वो डेवलपमेंट में। आज दार्जिलिंग डेवलप हुआ तो किसका डेवलप हुआ? बंगाल का दार्जिलिंग डेवलप हुआ। हमको अपना दार्जिलिंग डेवलप करना है, गोरखा का दार्जिलिंग डेवलप करना है। पहाड़ में कुछ बना तो किसका बना? बंगाल का पहाड़ का बना। ये तो बंगाल का पहाड़ नहीं है, ये तो गोरखाओं का पहाड़ है। और जो हमको ऑटोनॉमी मिला था डीजीएसी के टाइम में, दैट हैज़ बीन टेकन अवे टोटली। जीटीए एक्ट हैज़ नॉट बीन executed neither in letters nor in the spirit. That is why there is mass resentment among the people. It's only a handful of people who enjoy the fruits of GTA. Handful of people with that contractor mentality. GTA तो आदमी के लिए नहीं बना है. GTA is not for the people. GTA is for the few selected people who are henchmen of Mamata Banerjee and her coterie. कुछ नहीं है। पहाड़ का जो था, चार्म था, ग्लोरी था, वो गायब हो गया।
और इसको रेस्टोर करना, दैट इज़ आवर मिशन, टू ब्रिंग बैक दार्जिलिंग. ये आवर कौन है, जीएनएलएफ या बीजेपी? Now, our means those who, it's an alliance, no? There is an alliance. Anyone. Even those people in the opposition, in the position, I would not say opposition, जो position में है, लेकिन जिसका कोर गोरखालैंड है, जिसका कोर गोरखा स्वाभिमान है, वो सब लोग चाहते हैं. ये तो अभी एकदम, इट्स अ हॉट बलून, इट कैन बर्स्ट एनी टाइम. जीएनएलएफ का फॉल क्यों हुआ, क्या लगता है आप? नहीं, फॉल कैसे? फॉल इन द सेंस, ऑफ कोर्स, अब जब आपने देखा ही कि उसको लिस्ट से ट्रूथ, बिकॉज ऑफ द ट्रूथ, बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी. ट्रूथ इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी. सच के साथ हमेशा कम लोग जुड़ते हैं. सच का रास्ता कठिन होता है. जो सच बोलते हैं, जो सच करते हैं, जो मुद्दे पे रहते हैं, हम लोग पावर में बहुत साल तक नहीं रहे. इसी के कारण हो सकता है, क्योंकि देर आर नीड्स ऑफ द पीपल दैट हम लोग फुलफिल अभी नहीं कर पाएंगे. लेकिन इमोशनली पीपल आर कनेक्टेड विद अस फ्रॉम द हार्ट. दिखावट के लिए वो है, दूसरे जगह पे है, लेकिन आत्मीय रिश्ता है. JNF will come back and come back good. And the alternative is only the JNF. क्योंकि आज जो दिल्ली में बात हो रहा है वो JNF के फॉर्मूला के ऊपर हो रहा है, सुभाष घिसिंग के फॉर्मूला के ऊपर हो रहा है. आज हमको पता चला जब हम लास्ट मीटिंग अटेंड किए on the 5th of April 2025, if I am not mistaken, maybe 4th or 5th. I do not have that 11th memory, but maybe 5th of April 2005, if I am not mistaken, the last tripartite talk. तब हमको महसूस हुआ, जब हमारा डेलिब्रेशन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जब हम लोग का उससे आगे एक दिन राजू बिस्ट जी के यहाँ मीटिंग हुआ था, देन आई रियलाइज दैट JNF इज़ अ सक्सेस, सुभाष घिसिंग इज़ अ सक्सेस. हमारा कभी फॉल नहीं हुआ था. जैसे आपने कहा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फेलियर. हाँ, वी वर केप्ट एट अबेयंस. थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज में थे, लेकिन जो डेलिब्रेशन हुआ होम मिनिस्ट्री में, वो तो सुभाष घिसिंग का ही मुद्दा उठा वहाँ पे. सुभाष घिसिंग जी जो छोड़ के गए थे, उसको कॉन्टिन्यूटी करने का बात हुआ. ये GTR BTR बोल रहा है, क्या है? दिस इज 6th शेड्यूल, नथिंग एल्स. वो घुमा के नाक पकड़ रहा है, घुमा के कान पकड़ रहा है. क्या है GTR? व्हाट इज GTR? गोरखालैंड टेरिटोरियल रीजन. BTR क्या है? BTR का आत्मा क्या है? BTR तो बोलने से नहीं हो, तो वो सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है. दैट्स जस्ट अ नोमेनक्लेचर. बट व्हाट इज इनसाइड BTR? व्हाट रन्स BTR? Article 244. And what is in 244? 6th schedule. BTC is entirely 6th schedule area. You are talking about what you showed in your program, ADCs, district councils. वही है. तो सुभाष घिसिंग का सक्सेस वहाँ पे है, JNF का सक्सेस वहाँ पे है, जिन्होंने विरोध किया, घोर विरोध किया. 2007 में पार्टी उनका जब जन्म हुआ था, तो प्रिंसिपली सुभाष घिसिंग का विरोध के लिए जन्मा था ये पार्टी. गोरखालैंड के लिए तो जन्मा नहीं था. सुभाष घिसिंग को सत्ता से हटाने के लिए, 6th शेड्यूल को डीरेल करने से, अभी 2007 से लेके 2025 तक लगभग 20 साल, 2 decades, उनको ये समझने में लगे कि सुभाष घिसिंग वॉज राइट देन. सुभाष घिसिंग सही था. अभी सुभाष घिसिंग का बात दिल्ली में वो लोग बोल रहे हैं, हम सब लोग बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव कम टू अ यूनानिमस डिसीजन कि यही बात आगे बढ़ाएंगे, यही बात लेंगे. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. तो सुभाष घिसिंग जी को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड में रखें, तो आपके हिसाब से पहाड़ को कोई भी नेता मिला ही नहीं आज तक फिर? हाँ, दैट इज बिटर बट ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर. आज तक तो एक सही लीडर बनने के लिए, सॉरी अगेन इंटरप्टिंग, सही लीडर बनने के लिए हिल्स में क्या चाहिए? एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, अच्छा पॉलिटिकल, यू नो व्हाट टू से. अ लीडर इज बॉर्न, अ लीडर इज बॉर्न. समय
निकालता है एक लीडर को, अच्छा लीडर को। क्योंकि पहाड़ ने एडुकेटेड लोगों को भी देखा है। ये फिलैंथ्रोपी करके कोई लीडरशिप करता है, ये सब लीडरशिप नहीं है। कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, हरक बहादुर जी, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन आत्मा सत्य नहीं है। हरक बहादुर जी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, बट ही कैन स्पीक द ट्रूथ। महेंद्र पी लामा इज एन इंटेलेक्चुअल. He is tried and tested. He went to the people, but people did not reckon him to be a leader. Leadership is different. Leadership is something different. Political leadership is different. जीएनएलएफ में अभी आपको छोड़ के कौन है फिर? हमारा तो प्रेसिडेंट मानगी सिंह है। हमारा जीएनएलएफ में मेरा प्रेसिडेंट है, एक सेंट्रल कमेटी है। मैं अपने आप को लीडर प्रोजेक्ट नहीं करता। लीडर इज आइडेंटिफाइड बाय द पीपल। नहीं, जो नेतृत्व करेगा जीएनएलएफ का अब। हाँ, हम लोग हैं बहुत सारे। हाँ, नहीं, पहाड़ में भी है। हाँ, लेकिन द क्लास ऑफ सुभाष सिंह, इट वुड बी इनजस्टिस टू कंपेयर एनीबडी ऑफ अस विद सुभाष सिंह। इवन हिज सन? नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट इवन हिज सन। नॉट इवन हिज सन। सुभाष सिंह का मैच का भारत में शायद 2-3 ही लीडर हैं। नाम बताइए। हाँ, 2-3 लीडर है मेरे को लगता है। इट वाज लीडर्स लाइक वाजपेयी, मोदी जी, आडवाणी साहब, दे वो लीडर्स। अभी उनका मैच का कोई लीडर नहीं है। और मोदी जी से सेटिस्फाइड हैं आप? आज से 10-15 साल बाद फिर से आप सेम चीज कहेंगे कि हाँ, मोदी जी सही थे सब कुछ में? टुडे इन पॉलिटिक्स वी टॉक अबाउट टुडे, वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट, एंड इन प्रेजेंट यस, नॉट ओनली आप गोरखा इशू को रिलेटेड लेके हम इसका टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर इशू, कितना आगे बढ़ा, कितना प्रोमिसेस हुआ, डिलीवर हुआ कि नहीं, लेकिन राष्ट्र के जो प्रोग्रेस है, द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन एनी फ्रंट, be it economics, be it international standing of the country, be it trade, be it military, anything, the country has stood. Vishwaguru ka darja pe, third strongest army we have in the world. That's the latest report. We are a good economy, growing despite of the economic sanctions, despite of America's huge economic sanctions. Everywhere we're respected. Hostile countries like Afghanistan has become great friends of India. That is a great achievement for India's foreign policy. हर एक क्षेत्र में मोदी जी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, और मोदी एक युग पुरुष है। उनको गोरखा सपने के ऊपर तोलना ये नहीं किया इसलिए वो खराब है, वो अलग बात है। लेकिन देश बचना चाहिए। देश आगे है, देश बचेगा तो गोरखालैंड होगा। Nation first, always. That is what philosophy I have, and I got it from my leader. So I pass on this to everyone. Modi is a success. Modi is a phenomena. Modi is a great leader. We are very fortunate that we are in Modi's era. We are fortunate that I had been able to have his audience 4 times. थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा सा पहाड़ की तरफ जी। राइट। मोदी जी अपने आप में ही एक बहुत बड़े विषय हैं जिनके ऊपर में अगर पॉडकास्ट किया जाए तो शायद पूरा साल पॉडकास्ट करना पड़ेगा। जरूर। सो आई मीन पहाड़ को अगर मैं, क्योंकि मैं भी पहाड़ का ही बेटा हूँ, मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी मैंने कहा, राइट। सो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ के जो यूथ हैं बहुत टैलेंटेड है। अगर आप सिंगिंग कहें, बेस्ट, म्यूजिक बेस्ट, आर्ट बेस्ट, हमारे अगर हम कह के ही बुला रहा हूँ, हमारे पर्सनालिटी को अगर आप देखें, बेस्ट। आप इंग्लिश स्पोकन में देखें, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को गुरुत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि क्यों इतना इंग्लिश करना है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम नकार भी नहीं सकते हैं। जरूर। बेस्ट, पढ़ाने में बेस्ट। आज के दिन में दार्जिलिंग हिल्स में जितने स्कूल्स है ना, थे ही कहना पड़ेगा, वहाँ पे लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे, उसमें भी बेस्ट, क्योंकि टीचर अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। कमी कहाँ है? प्लेटफॉर्म। द यूथ्स हैव द पोटेंशियल बट देयर इज नो प्लेटफॉर्म। हमको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में ये सब चीज़ जो आपने कहा,
हमारा कमी कमजोरी। और यूथ हम बोलते यूथ आर द फ्यूचर, नो, यूथ आर द प्रेजेंट। हमेशा ये पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है कि यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर community, of a society, of no, youths are the present. I'll not be youth again. I'll not be youth again. Now youth have to actively participate, come forward, take the role, be the role models. उनको participate करना चाहिए। बाद में करूँगा, पॉलिटिक्स के लिए तो यूथ ही है। You'll have to give your best. अगर आप यूथ नहीं देंगे तो बुढ़ापा में देर आर सर्टन लीडर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, द इंटेलेक्चुअल्स, द प्राइम टाइम्स, दे डिड नॉट गिव द यूथ, दे डिड नॉट गिव देयर प्राइम टाइम्स टू द कम्युनिटी, एंड आफ्टर रिटायरमेंट दिस ऑल पीपल हैव assimilated, accumulated the best, like all the conviction, while the worst are full of passionate intensity, they say. So I appeal to the youths. यूथ को मैं अपील करना चाहता हूँ, आप वर्तमान हो और भविष्य आपको बनाना है समाज का, सोसाइटी का। और आपने कहा प्रचुर टैलेंट है, प्रचुर स्कोप है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारा यूथ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, वो व्यवस्था के कारण है। जो हमारा है, जो GTA अभी है, जो बंगाल का अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, स्टेप मदरली अप्रोच। You created a platform, I created a platform, but not everybody has that privilege. They need a little push, they need a little support. And who is going to support? Not individuals. The system is going to support them. We have to create a strong system. We have to create a strong governance body. हमने गलती किया 2007 में 6 शेड्यूल को अपोज करना गलती कर दिया। इतना पावरफुल व्यवस्था है, आप भी जानते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्रीज आता है क्या है कैसा है। और जो पढ़ा लिखा लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके पूछे कितना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चल रहा है, क्या है फिनेंशियल, क्या है कैपेसिटी, क्या है, व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स, एक इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। 12,000 करोड़ आने वाला था हम लोग, 12,000 करोड़ मामूली रकम नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल 6 शेड्यूल एरिया हम लोग का होता। अभी तो BTC है, BTR है, अभी BTC से शुरू किया था, हमसे पीछे से। हमारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इट वॉज राजीव गांधीज ब्रेन चाइल्ड टू रनिंग ऑटोनमस रीजनल काउंसिल्स। तो DGAC बना, फिर झारखंड का काउंसिल बना, फिर बोडो का काउंसिल बना, लद्दाख का काउंसिल बना। तो ये सब अपग्रेड हुआ, लद्दाख UT में पहुंच गया। BTC क्या हुआ आप जानते हैं, BTC 6 शेड्यूल एरिया में BTR हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, वेरी पावरफुल। झारखंड स्टेट हो गया, फुल फ्लेज स्टेट हो गया। हम कहाँ रहे? हम तो आगे नहीं गए, पीछे गए, रिवर्स में गए। आगे जाना है, पॉलिटिकल में तो ग्रोथ होगा, असेंडिंग में जाए, हम तो डिसेंडिंग हो गए, डिसेंड फ्रॉम DGAC वी केम बैक टू GTA। इट्स अ मंकीज टेल। मेरे को ये जानना है कि मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए कि 6 शेड्यूल यहाँ पे मिल जाता, ठीक है, पहाड़ में 6 शेड्यूल लागू कर दिया जाता। अभी एट प्रेजेंट तो आप मानते हैं कि पहाड़ एक शांति वातावरण है, पहाड़ में लोग तो मिल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग। ऐसा नहीं होता कि मतलब डिवीजन आ जाता है यहाँ पे? You'll have to read our accord very intensely and contently. आपके पास अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। भारत के संविधान के ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगा जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, वन साइडेड हो। एक पर्सपेक्टिव चला, एक नैरेटिव चला, एक प्रोपोगंडा चला, मिस इन्फॉर्मेशन किया, मिस गिविंग किया कि दिस इज ट्राइबल डोमेन। नो, इट वॉज नॉट ट्राइबल डोमिनेटेड 6 शेड्यूल। The 6th schedule that was accorded to Gorkha Hill Council Darjeeling would have been a general dominated 6th schedule. आपने पढ़ा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, आपने विरोध कर दिया किसी के इशारे पे, अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए। 99% of the people have not understood 6th schedule, the 6th schedule that we were getting, और ऐसे ही विरोध कर दिया।
जिन्होंने विरोध किया वो उसको समझ में आया बाद में। जो सबसे एंटी थे सिक्स शेड्यूल का, वो आज होम मिनिस्ट्री में जाके बोल रहे कि हमको सिक्स शेड्यूल ही चाहिए। जिन्होंने ये पहाड़ को डिरेल किया, सिक्स शेड्यूल का ट्रेन को डिरेल किया, क्योंकि सिक्स शेड्यूल तो बहुत आगे पहुंच चुका है। स्टेट का रेजोल्यूशन है, स्टेट ने रेजोल्यूशन बना के भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने वेटिंग किया, होम मिनिस्ट्री ने इंडोर्स किया, कैबिनेट डिसीजन हुआ है। हमारे सिक्स शेड्यूल के ऊपर देयर वाज अ कैबिनेट डिसीजन एंड कैबिनेट डिसीजन कैन नॉट बी ओवररूल्ड। बिल लैप्स हो सकता है, बिल रिजेक्ट हो सकता है, बिल पेंडिंग हो सकता है, लेकिन अ कैबिनेट डिसीजन विल कंटिन्यू विद होल्ड ग्राउंड। तो हमारा कैबिनेट डिसीजन हुआ है, बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड but there were certain reservations of the opposition. That bill was referred to the Parliamentary Standing Committee. Parliamentary Standing Committee was headed by Sushma Swaraj. Sushma Swaraj जी थे। सुषमा स्वराज जी ने हेयरिंग किया, 18 दिन में 2 घंटा लगा के हेयरिंग किया। सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, सबका बात उन्होंने सुना, डायरीज किया, मिनट्स बना और रिपोर्ट कंप्लीट हुआ। जब रिपोर्ट कंप्लीट हुआ, व्हेन शी सबमिटेड दैट रिपोर्ट, अभी भी है, उन्होंने क्या कहा सिक्स शेड्यूल के ऊपर? उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फिटेस्ट थिंग फॉर दार्जिलिंग, फिटेस्ट। एंड उन्होंने यही बोला है कि 2 सजेशंस आई विल रिकमेंड। वन, देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। That is a constitutional mandate. DJC was not very constitutional. GTA is not constitutional. तो उसमें नहीं था, ठीक है, लेकिन सिक्स शेड्यूल जैसा म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें तो रिजर्वेशन है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहनों के लिए। तो हमारा सिक्स शेड्यूल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और वुमन को भी रिजर्वेशन दो। सिर्फ 2 चीज़ बोल के There were 22 parties she heard. बहुत सारे लोग ने विरोध किया। उस समय माहौल था ऐसा, षड्यंत्र था। Despite their opposition, because in that parliamentary standing committee, ममता बनर्जी के साथ, even ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज चेयरपर्सन था, ममता बनर्जी was the member, Alka Advani was the member, Sachin Pilot was a member, Ahluwalia was a member. I believe there were around 31 members who gave a green signal to sixth schedule. और आज भी वो कोल्ड स्टोरेज में है, कुछ नहीं हुआ है। A pending bill can always be reintroduced. 1 मिनट समय देता हूँ आपको ये समझाने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहाड़ के लोगों को कि जीएनएलएफ ने जो 6 शेड्यूल का जो कल्पना किया था, वो कैसे पूरे पहाड़ को जोड़ के रखता और वो कैसे जो नॉर्थ ईस्ट में जो 6 शेड्यूल है लागू, उससे कैसे अलग है और कैसे सबको यूनाइटेड हमको ये पढ़ना पड़ेगा। जस्ट कुछ पॉइंट्स। यस, देयर आर मेनी पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, हम ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बात करते हैं, देयर वर 10 सीट रिजर्व फॉर ट्राइबल्स, 10 सीट रिजर्व फॉर ट्राइबल्स। लेकिन जेएनएलएफ ब्रांच कमिटी, all the 4 JNLF branch committee and the central committee then took a resolution. अभी भी रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन लेके भेज दिया था कि जो 10 सीट्स है दैट शुड बी ओपन फॉर ऑल। और लैंड राइट्स जो है, लैंड राइट्स कि ट्राइबल का जमीन, आज का दिन में पहाड़ में 6 शेड्यूल तो लागू नहीं है, फिर भी ट्राइबल का जमीन जनरल नहीं खरीद सकता है। तो देयर वर सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग लैंड राइट्स एंड ऑल दैट वुड रिमेन स्टेटस को। और सबसे बड़ी बात ये है, आपका रिपोर्ट में भी, आपका डॉक्यूमेंट्री में भी है कि इन 6 शेड्यूल देयर इज लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स दैट ओनली इज एंजॉयड बाय द पार्लियामेंट एंड द असेंबलीज, नॉट इवन यूनियन टेरिटरी। आज लद्दाख क्यों बोल रहा है कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए? लद्दाख क्यों बोलेगा? यूटी है ऑलरेडी। लद्दाख क्यों बोल रहा? अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू साहब ने कैबिनेट बैठ के कैबिनेट डिसीजन लेके होम मिनिस्ट्री को भेजा है, आई बिलीव दैट इज इन 2023, कि नाउ वी वांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 शेड्यूल, फुल फ्लेजेड स्टेट वांटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ 6 शेड्यूल।
तो आपके हिसाब से दो डिमांड है, एक 6 शेड्यूल का और दूसरा गोरखालैंड का। Nothing less than 6 schedule. We've already apprised the Home Minister, the Prime Minister. The stand of JNLF is very clear. Nothing less than 6 schedule. और 6 schedule से बड़ा क्या है? Union territory with state assembly and statehood. कहीं अगर देश के वर्तमान परिस्थिति में देश अगर गोरखालैंड का डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते तो नथिंग शुड बी लेस देन 6 मर्जर मर्जर विथ हू सिक्किम, नो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी समय समय पे आप सीएम से मिलते भी हैं, लोगों का ये भी कहना है कि पता नहीं कुछ शायद आप उस विषय में बातचीत never करते हैं। discussed merger. That's on a personal level that we meet to the CM. That is on a very personal level. Never have we ever spoken a word on merger. He is also strongly opposed to it and I too am. क्योंकि हमारा JNLF का फिलॉसफी में सुभाष घी सिंह ने मर्जर का ऑप्शन कभी नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था। They should enjoy their own space. Sikkim is a beautiful state. We're very proud of Sikkim. और इधर में merger, these things, I believe this is politically not possible. Politically not possible. बट कहीं ना कहीं वो तालमेल मिलता हुआ नहीं दिखता है वहाँ पे भी। नेपाली स्पीकिंग पीपल हियर आल्सो है नेपाली स्पीकिंग पीपल। आर्टिकल 371F ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी पीसफुल स्टेट है, उनका अपना इश्यूज है, अपना स्टाइल है, उसको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? देयर आर मेनी थिंग्स टू इट, but I have to openly say that is at least not the JNLF's agenda of merger. We've never been supported that. We fought for Gorkhaland. Our people have not died for merger. 1,200 plus people have laid down their lives for a separate state of Gorkhaland. तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आज से 8-10 साल पहले गोरखालैंड कह रहे थे या फिर गोरखालैंड का डिमांड कर रहे थे और आज मर्जर कर रहे हैं? फिर No, both of them. That is a small section of people, negligible section of people, and they are the agents of the state. You know, they are the agents of the state. Somebody has put them to work to destabilize certain things here. That is a negligible portion of some handful of people. पहाड़ को एक नया लीडर का जरूरत है या फिर आप वो लीडर बनना चाहते हैं? हर एक युवक को, हर एक आदमी को एक लीडर बनने का ज़रूरत है। पहाड़ में बहुत ज़्यादा लीडर हो गए, एक नीडर आदमी को लीडर बनाना चाहिए। सुभाष घी सिंह जैसा आदमी अगर हो तो हम लीडर मान सकते हैं, बाकी को हम लीडर नहीं मानते। मैं खुद भी वो क्राइटेरिया में आई डू नॉट फुलफिल दैट क्राइटेरिया। लीडर नहीं चाहिए। वी नीड समबडी लाइक सुभाष घी सिंह एंड आई बिलीव टाइम विल कॉम्पनसेट दैट। वैक्यूम तो नहीं रहेगा, टाइम विल कॉम्पनसेट दैट। बहुत शॉर्ट में समझना चाहूँगा, आपने लास्ट ये जो अभी चल रहा है ये एमएलए टेन्योर में आपने क्या क्या किया? देखिए, इसका तो वर्णन देना बहुत इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं जब स्टडी कर रहा था मैं देख रहा था हर नेता का ही अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना पेज बढ़ रहा है, उनका कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है। आपका मैं उस तरह से कुछ नहीं पाया। इनफैक्ट पास्ट में था शायद आपका पेज वगैरह कुछ। ऑल हैज़ बीन हैक्ड, ऑल मेरा 2 बार माई पेज गॉट हैक्ड for social media pages and I pay not much attention to these platforms now क्योंकि इतना मेहनत किया, इतना वो था, तो हैक हो जाता है। I could not restore it back. सेटिस्फाइड हैं अपने टेन्योर से, एमएलए टेन्योर से? I am very 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 much satisfied as an MLA as what I have done. पोजीशन में जो था उससे भी ज़्यादा हमने काम किया। जो हमको दायित्व दिया गया वो पूरी तरह से निष्ठापूर्वक मैंने निर्वहन किया। फ्रॉम स्पीकिंग इन द असेंबली ऑन रेजोल्यूशन फॉर द गोरखस, कुछ समस्या हो, असेंबली से लेके होम मिनिस्ट्री तक, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो, चिट्ठी लिखना हो, वार्ता करना हो, यू कैन आस्क माई फ्रेंड्स दोज हु आर पार्टी टू द डेलीगेशन एंड ऑल।
और अपना हिसाब से मैंने किया है. I was elected in the summer of 2019 in the by-elections until today, when it is the winters of 2025. Not a single month I have taken salary for my own personal purpose. जितना भी मेरा सैलरी है, perks, allowances है, I have given it in charity. आप चैरिटी भी करते हैं? I have given it in charity. I have given it in charity. I have अब क्या अपना गुण क्या गाऊँ, ये किया वो किया. That was what I was selected to be. क्योंकि किसी को भी यहाँ बिठाने से पहले थोड़ा रिसर्च और गहराई से करना ज़रूरी होता है. मैं देख रहा था कि आपको कमेंट में लोग कहते हैं आप चिट्ठी लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं और काम कम करते हैं. देखिए, चिट्ठी लिखना जैसा मुश्किल का काम कुछ भी नहीं है. क्या काम, विधायक का जो कोर्स आता है उसका पूरा इस्तेमाल मैंने किया है. 70 lakhs per year. I have given all development works. Apart from that, more than 4 crore has been disbursed by me in health schemes. मैंने वो दिया है. और पर्सनली भी मैं बहुत मदद करता हूँ. और ये सब चीज़ है. चिट्ठी लिखना अलग बात है, काम करना अलग बात है, इंटरटेन करना अलग बात है. ये सब मैं अपना स्पेस में करता हूँ. असेंबली में मैं कभी डांस नहीं करता हूँ. असेंबली में मैं गंभीरतापूर्वक अपना विषय को उठाता हूँ. स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली. आई पैशनेटली राइट टू द प्राइम मिनिस्टर. आई पैशनेटली राइट टू द होम मिनिस्टर विद करेज ऑफ कन्विक्शन. Whenever I do something, I do it from my heart. Whenever I dance, I do it from my heart. And I dance in a dancing stage. नहीं, वो किसी को भी हक है मेरे ख्याल से. और I do a lot जीवन of जीने things. का. जीवन, that is also my personal side that we've not discussed, but these are the things I do. And But कहीं ना कहीं उस चीज़ को करते हुए क्या आप ये भी फील करते हैं कि मैं इस तरह से लोगों के सामने रह पाऊंगा? जैसे कि हालांकि मैं इस विषय में आना नहीं चाह रहा था, फिर भी जब आ गया कि मधुमक्खी के छत्ते आपने मुंह में डाल लिए, या फिर मधुमक्खी डाल लिया, या फिर बंदर को खाना वाना खिलाना, whatever, you know it, right? Plowing the fields. हाँ, taming the इस टाइप के monkeys. कंटेंट क्रिएशन में मैं भी विश्वास नहीं रखता, बट पूछना पड़ रहा है अभी क्योंकि हमारे बातचीत में वो चीज़ आ गया. सो ये करते वक्त कहीं ना कहीं क्या आप फील करते हैं कि ये जब कंटेंट सोशल मीडिया में जाएगा तो लोग मेरे को पसंद करेंगे या फिर मेरा चर्चा करेंगे? चर्चा में रहना चाहते हैं आप? जरूर, जरूर. चर्चा तो होना चाहिए. राजनीति में अगर चर्चा न हो तो छपान का हर एक को वो होता है, इच्छा होता है छपान में रहना, चर्चा में रहना. केवल मरा हुआ लाश का ही चर्चा नहीं होता है, वो बॉडी बन जाता है. मरा हुआ एक लाश कुछ नहीं करता. जीवित आदमी तो हर एक चीज़ करता है और करना भी पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई आई एम कॉल्ड अ सेलिब्रिटी एमएलए. एमएलए बहुत हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, कलिंगपुर में हुआ, कशोंग में हुआ. रिकॉर्ड ब्रेकिंग एमएलए हुआ, 7 बार हुआ, 3 बार हुआ. मैं तो अभी हैट्रिक बोल रहा हूँ. हमारा 7 बार हुआ वाला एमएलए भी है, लेकिन किसी को नाम पता नहीं है क्योंकि वो चर्चा में नहीं थे. और चर्चा में इसलिए भी नहीं थे क्योंकि सोशल मीडिया उस समय नहीं था, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था. अगर होते तो वो भी यूज़ करते. And today I'll tell you, if there was social media during Mr. Subhash Gising's time, you'd have been the most viral leader. You'd have been the most viral leader. कुछ चाहिए, कंटेंट बना के लेके भी कुछ अच्छा इंटेंट चाहिए. और सब जो मेरा कंटेंट है that is rooted. हर एक चीज़ में करता हूँ. हनी भी मुंह में डालना, हनी को बीज को मुंह में डालना, फील्ड प्लाव करना. जस्ट एक मजाक में काटा था उस दिन. हाँ, एक ने काटा था. अभी भी एलर्जी है, जीभ में काटा था. अभी भी कोई मधुमक्खी मेरे, आई एम एलर्जिक टू द बीज स्टक. तो अभी भी मेरे को 2-3 दिन आगे मेरे को एक मधुमक्खी ने काटा था, तो वो एलर्जिक हो गया, फिर वो फूल गया. मेरे को काटा था. ऐसा वायरल हुआ था वो आपका वीडियो. हाँ, दैट इज़ वाई आई गॉट अ लॉट ऑफ मेरा उससे मेरे को एडवांटेज हुआ. चर्चा में रहना चाहिए. नेशनल लेवल पर भी वो चर्चा पूरा बहुत. आई लव टू बी इन द मीडिया. आई लव टू बी इन द न्यूज़. आई लव टू बी वायरल फॉर गुड रीजंस, नॉट फॉर बैड रीजंस. करप्शन के लिए नहीं. इस बार जीतेंगे आप? 200%, नॉट 100, 200. कहीं से भी खड़ा होऊंगा, मैं जीत जाऊंगा. कहाँ से खड़ा हो रहे हैं?
That is for the party high command to decide. That is for party to decide. किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग ममता बनर्जी फ्रॉम दार्जिलिंग. उससे बड़ा चीज़ क्या है? ममता जी खड़ा रहे दार्जिलिंग से, मैं आई चैलेंज. बाकी तो क्या गनती है? बाकी किसको गनते हैं ना? दैट कॉन्फिडेंस आई हैव, एंड आई विल नॉट डिस्कस व्हाई आई हैव, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई पीपल. मैं जीतूंगा नहीं, मेरा जनता जीतेगा, पहाड़ जीतेगा, गोरखा जीतेगा. गोरखा पे भरोसा है, खुद से ज़्यादा मेरा जनता पे मेरे को विश्वास है. ऐसे एमपी पे विश्वास है? आई हैव. ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. आई नो ही इज़ अ गुड फ्रेंड. एमपी पे है, बहुत सारे लोग हैं. बाकी एमएलएस पे? सब पे है, जितना भी. बीपी बसगाई जी भी दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है. उनका अलग रास्ता है, अपना अपना रास्ता होता है. बसगाई जी का अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स है, हमारा अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स है. लेकिन पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है. पॉलिटिकल लेवल पॉलिटिकल पे हाँ तफाक है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डोंट लाइक हिम डूइंग, और देयर आर मेनी थिंग्स दैट ही डोंट लाइक मी डूइंग. क्योंकि उनके ऊपर में भी बीजेपी का मोहर लगा हुआ है, और आपके ऊपर में भी फिलहाल के लिए. परमानेंट नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल के लिए. हाँ लगा है. बट फिर भी कहीं ना कहीं दो अलग अलग रास्ते. There are some people who exploit. There are some people who explore. I am a leader who explores, not exploit. The label, the people who helped me, the people who supported me, I'm grateful for them. I'm grateful to them. I'm grateful to my people. I told you, politics is not my bread and butter, it's my conviction. People before people. People are always first, profit thereafter. I believe it's people's politics. I'm very people oriented. अब मैं कुछ नाम लूँगा, हम डिस्कशन के लगभग अंतिम चरण में ही हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से बुलाऊँ. मैं ऐसा नहीं है कि हमारा पॉडकास्ट आपको एक बार Thank you, that's a great honor. That's है a great ना, honor. खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. बिकॉज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉडकास्ट को sure, लेके आना sure, हमारा उद्देश्य है. इन फ्यूचर में भी आई विल टॉक ओनली अबाउट योर यू नो जर्नी. सो आज बहुत कम समय मिला उस पर्टिकुलर चीज के लिए. It's the beginning, no? यस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. सो कुछ नाम लेना चाहूँगा मैं. प्रत्येक नाम के लिए 1 मिनट समय दूंगा आपको. आपको डिफाइन करना है आप क्या उनके बारे में सोचते हैं या जानते हैं. It's a very difficult thing, no? No, anyways, you just try to be as honest as possible. Bimal Gurung. Bimal Gurung was a leader. Was a leader of Gorkha Janmukti Morcha who made certain mistakes unknowingly. Now he is there to rectify that. बहुत सारे political गलती उन्होंने किया. I am telling it in Hindi so that it's easy for many people to understand. तो उन्होंने गलती किया. वो लीडर थे, गोरखा का एक लीडर थे एक समय काल पे. तो जानबूझ के तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भूल चूक में उनसे गलती हुआ. तो वो रेक्टिफाई वो अभी करना चाहते हैं. तो आई हैव वेलकम्ड इट. वो अच्छा संकेत है. एक लीडर अगर भूल करते हैं तो सही समय पे अगर वो गलती का स्वीकार करते हैं तो इट्स गुड. दैट्स व्हाट आई से अबाउट मिस्टर गुरु. मिस्टर अनित थापा. अनित थापा इज द प्रेजेंट लीडर. लीडर हैं वो? हाँ लीडर है, क्योंकि आपका अपना पार्टी का वो लीडर है. सबका हम नहीं बोल सकते. अभी टेक्निकली ही इज द लीडर ऑफ द हिल्स, द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव. अच्छा आदमी है. वो अपने आप को डिप्लोमेटिक आंसर. या बिकॉज ही रियली उनका पॉलिटिक्स इज पोलाइट ट्रिक्स. मैं बोला ना आगे मैंने बोला व्हाट पॉलिटिक्स पोलाइट ट्रिक्स. तो लेकिन उनका भी अभी लीडरशिप में अभी है. प्रेसिडेंट है, एक पार्टी का प्रेसिडेंट है, जीटे का एग्जीक्यूटिव है. अभी चुनाव सामने है तो इतना टिका टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं. देखिए, लेकिन ही इज़ द प्रेजेंट लीडर. बिमल गुरुंग वाज अ लीडर, ही इज़ द प्रेजेंट लीडर रनिंग द अफेयर्स इन जीटीए. खुश हैं आप उनके जीटीए को चलाने के तरीके से? जीटीए को चलाने से तो वो अपने आप खुश नहीं है. ही हिमसेल्फ इज़ नॉट सेटिस्फाइड.
हमारा बात छोड़िए, वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है जिस चौकी पे वो बैठे हैं और जो वो काम कर रहे हैं। उनका अंतरात्मा से अगर वो पूछेंगे तो वो खुद ही निराश है। काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को लीज पे दे दिया गया, क्या कहना चाहते हैं इस पे? If they have followed the government procedure and that's fine, गवर्नमेंट प्रोसीजर में किया गया है, करप्शन फ्री है, नेपोटिज्म नहीं किया, फेवरेटिज्म नहीं किया, तो दैट टाइम विल जज। लेकिन हाँ, डीजेसी के टाइम में भी लीज होता था, लेकिन हुआ द लीजीज, व्हाट इज़ द लेजर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लीजर एंड द लीजी, व्हाट इज़ अब बोलते हैं ना वो, उसमें क्या अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, दैट टाइम विल टेल इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर। एक वर्ड जो है वो पहाड़ में बहुत मंडरा रहा है अभी, करप्शन करप्शन करप्शन, कितना आपको लगता है ये सच है? Corruption, until it is proven, it's not corruption. There is corruption, massive corruption. Everybody says corruption, but we need proof. There are agencies that should investigate that. That is not my department. So, as a lawman, as a man who understands law, I understand evidence, I understand witnesses, I understand cases. तो हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए करप्शन बोलना इजी है, लेकिन प्रूव करना तो दैट इज़ फॉर द एजेंसीज टू डिसाइड करप्शन हुआ नहीं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज आर सुपर, बेस्ट इन द वर्ल्ड। देयर इज ईडी, देयर विजिलेंस, देयर आर मेनी एजेंसीज दैट कैन डिग अप द ट्रूथ, द CBI. सो आई बिलीव टाइम विल टेल। नेक्स्ट नेम इज मदन तामंग। मदन तामंग, हाँ। आई वॉन्टेड टू बी अ कॉम्बो ऑफ टू लीडर्स। मैं दो लीडर का कॉम्बो बनना चाहता था, एक सुभाष सिंह का और एक मदन तामंग का। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट मदन तामंग, फ्यू थिंग्स। सो मदन तामंग इज गॉन एंड वी लॉस्ट अ लीडर, अ ग्रेट ऑपोजिशन लीडर, एंड वी शुड स्पीक गुड अबाउट द डेड, अ मैन हु कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. May he rest in peace. So, Madan Tamang was a great leader. Gorkhas will always remember him for being bold, for speaking certain things that we didn't like then. I was one of the greatest. I was one of his greatest critic. He considered me nothing because I was not in prominence then. But Madan Tamang is gone now, so rest in peace. Mr. Harka Bahadur Chhetri? I dislike that man for many good reasons, because despite being an intellectual, despite knowing many things, he chose the line of propaganda politics. He chose to speak the untruth. And he misguided many leaders of the hills. He misguided even Mr. Bimal Guru. He is an opportunist. He is an intellectual who sold his conscience, an intellectual without any conscience. So I dislike that person. He's fatal to the community. एक नाम शायद सुनने के बाद आपको भी उसको डिफाइन करने में और अच्छा लग सकता है, मिस्टर अजय एडवर्ड्स। अजय एडवर्ड्स a philanthropist. सोशल काम करेगा, पॉलिटिकली जीरो, एग हेड बोलते हैं ना, कुछ नहीं है दिमाग में, कुछ नहीं है। हाँ, वो है फिलानथ्रोपिस्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़ीरो है। अच्छा है कि सोशल वर्क में फोकस करे। अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो बर्मा का जंगल में जो कंपास सिपाही है, वो मैं बोलता हूँ, वो तो सिपाही ही गुम हो जाएगा। ही विल लीड अस टू नो वे डिसमे एंड डिस्डेन, विजनलेस। उनका कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिटिक्स में। ही हैज़ नो कंसिस्टेंसी। कहीं मैं पढ़ रहा था शायद आपके पॉलिटिकल करियर में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा कुछ? हाँ, मेरा करियर बिगाड़ने में उनका हाथ है, संवारने में नहीं। मेरे को पार्टी के अंदर रह के विरोध करना, मैं MLA रहते उनका MLA बनने का एम्बिशन, वो सब चीज़ है। उनका कोई वो उसमें वो भी दिखाई देगा आगे, आगामी चुनाव में 2026 में दिखाई देगा कि उन्होंने मेरे को बनाया था या मेरे को बनाते बिगाड़ने के चक्कर में वो खुद बिगड़ गए। He is a philanthropist. Philanthropist in a sense that yes, he does. His family has been doing some social work, CSR demand and all, वो हो सकता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत डिफाइन किया है आपने, फिर भी मिस्टर BP बच गए।
अब बीपी बजगाई जी के बारे में कम ही बोलना ठीक है. उन्होंने कहा था, उन्होंने एक कविता लिखा था कि I exactly don't remember that. He said Basgai Moryo. Basgai is dead. That applies to him. Politically he is dead. Basgai is politically dead. I'm not being very harsh, but it's better he focuses on journalism, criticism, critical writing than in politics. There's no space for politics. He's not a political material. He's not a political material. वो ज़्यादा साहित्य में ध्यान दे, थोड़ा जर्नलिज्म में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन विदाउट प्रिजुडिस और जो प्रतिशोध का भावना लेके अच्छा चीज़ अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनका ये गिफ्ट है. ही कैन राइट वेल, ही कैन स्पीक वेल, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मटेरियल. कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका बस यस या नो में आंसर देना है. जरूर. ठीक है. गोरखालैंड पॉसिबल है? 200%. जो चीज़ हम रोपे वो तो उगना ही है. 100%. बीजेपी ने हिल्स को बिट्रे किया है? नो, नॉट येट. जीटीए एक फेलियर है? 100%. The very word GTA is a failure. GTA is leaders united in public but divided privately. true everywhere, universal truth. Not to be denied. It's a universal truth. Do memes help in politics? It does, especially in Darjeeling. I'll experiment it the third time. क्या कंटेंट का प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट? वो तो सरप्राइज होगा. Is social media your real power? It contributes to 30% of whatever I am. The rightful use of social media contributes to 30% of what really I am. And I'm in debt to the media platforms that have made me what I am. अच्छा लगा इनफैक्ट आपके साथ बात करके. Thank you so much. Pleasure. And anytime you call me, I love to come. आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं. It was a great thing, and to be very honest, I never sat on a podcast like this. To find it here at home, especially in North Bengal, a channel like COD, I thought you were very angry with me for the reasons I stated at the very start of but you made me feel very comfortable. I am very humbled. Both. मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, हम लोग भी एज अ प्लेटफॉर्म कर ही सकते हैं. Thank you so much. As a lawman, I should not have done that. And I also request everybody to strictly adhere to copyright violations, to be very careful, because there is a lot of effort of somebody who is put in, and just to share their contents, it makes no sense. I made a mistake. Everybody shouldn't. And I've read your rules and regulation, and I'll strictly adhere to that. No, that we send to every yeah. That's good. That's Yeah, good. That looks very professional. Yes. That looks very professional. And I'm really honored. I'd love to come again and again to share my ideas, to get your views. It was a pleasure being here. Even same here. Thank you, sir. Thank you so much for coming to this platform. Thank you so much for giving your time. Great. Thanks a lot. Thank you.